also coming. Okay, brilliant. Yeah, we'll just take 2 more minutes. Okay, and here he comes. Okay, let me just start the discussion by saying that 2 days ago there was this metric class student who was just scolded by his parents and committed suicide by eating the pills or something which we put in the wheat. तो उसके बाद व्हेन आई गॉट द स्टैटिस्टिक्स ऑन गूगल, पाकिस्तान में तो ये कंटिन्यूसली चल रहा है. मुझे समा की रिपोर्ट मिली 2013 में मैट्रिक स्टूडेंट ने कमिट किया सुसाइड. फिर 2016 में भी एक और हुई थी सुसाइड. अब लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन टू यू एंड यू कैन सी दैट. यस, this is Sama's. Rawalpindi student commits suicide after failing in metric exams 2013. And then Hmm. Tribune, Shahryar Afridi committed suicide by consuming poison 2019. A teenager, Hmm. Shahryar Afridi from Khyber Pakhtoon district, when results showed Hmm. that he had failed in metric examination, said the family source on Monday. So I want you, Hafsa, to describe us the psychology behind their parents, especially. Why are Hmm. they so rigid or maybe in the race to compete their, son and daughters? Hmm. Maybe it's the family pressure or social pressure, whatever it is. What goes into their mind? Why are they doing this? Hmm. Okay, so for me, it's pretty simple. Unfortunately, it is pretty simple, but it's complicated at the same time. So here's the thing. Pakistan, as most Asian countries, is a collectivistic culture. Okay? It is not individualistic as Western or European states. So in collectivistic cultures, what's basically the entire ordeal behind that is that it's based on the fact that you are as responsible for society and society is responsible for you. So individualism kind of fades away in that, right? So basically, whatever you do reflects on your family, on your friends, on what society stands for. And that's the entire concept of where honor, respect, and pride, all these things fall in. So the thing is that Pakistan, being a collectivistic culture, which holds academics in a lot of high regard, as most Asian countries do, um, they have a tendency of competition between the masses, between students to excel, to be better than their peers, to be better than their relatives, because it's a badge of honor in matters of bringing respect and bringing honor to the family. So when a child, who's been consistently been told that you need to get good A's, you need to get great grades. We need all A's, and even getting a B is considered like a whole high kind of moment. So students from a very early age are always told that they need to excel in studies, they need to get the highest grade, they need to be toppers. So because that their children's achievements are basically their family's achievements, and that brings good things to the family. It brings a lot of honor to it, a lot of pride to it. So when a child does not, it does not succeed in doing so, when it gets a good more than the family's expectation or what society considers the best thing, they tend to go through a lot of problems in matters of not only from their family because they're constantly getting scolded, they're called a failure, they're told to be incompetent, they're told that they're not doing well enough, and put into constant comparison with their peers and their relatives. Que dekho, that cousin is a doctor, and that cousin did his, pass the same exam with these flying colors. Why can't you do that?
So this constant race puts the child with a lot of stress, a lot of parental pressure, a lot of stress on the academic side as well as the familial side. And it's a child in the end. It's a 16, 17-year-old child quite often. That's usually when signs or, these kind of suicidal ideations tend to present themselves, are at the teenage years, because that's when the more competitive exams tend to come on board, like matric or CIEs. That's when the pressure really builds in. So that's when majority of the students start to feel suicidal and depressed, because there's under so much pressure from their family to excel, from society, the comparisons and whatnot. That the stress is what kind of gets to them. And when, not everyone's made from the same cloth. So there's some individuals that are more sensitive. There's some individuals that are just more prone to anxiety or depression. Unki kuch predispositions bhi hoti hain, considering, families otherwise as well. So keeping all of this in mind, there's some students that are at higher risk of suicidal ideations or depressive episodes. And when they go through that in matters of like when they are suffering in that form, I think somebody changed that. Okay, but when they're going through that, it's massively important to have support, and they don't even have that, because when they talk to their parents about it, that, I feel stressed, there's this going on, there's that going on, they're told that, bro, you should toughen up, and, aisi koi baat nahi hai, ye sara dimag ka aise hota hai. Consistently, like, sidelining and trivializing their issues, until that point eventually comes where the child just breaks. And like I said, everyone's not made from the same cloth. For some, a breakdown is just crying. As for some, it's, a certain depressive episode. For some, it's a matter of life and death. And that's where they choose that it's better to, instead of going through this constant humiliation, to be a factor of, a disgrace to their family, and then have so many expectations on them, on such a small mind, on such a small child, they feel it's better to just end their life. And unfortunately, sometimes it's a cry of help, which turns into permanent death. And sometimes it is meant to be a way that I don't want to live this life anymore. It's better if I just leave. So the role of parents is extremely important in matters of children, and how they deal with this stress, especially the expectations that's put on them. Instead of having that stick on the head, okay, do this, okay, like pado. Parents need to have a genuine concern to create a love for knowledge in their children. That the students and the kids themselves, they want to learn, they want to excel, not for the sake of competing, not for the sake of bringing honor to the family, but for the sake of learning and for the sake of growing as an individual, which a lot of parents don't here understand. They just want straight A's. They don't want their child to learn. They want the straight A's. So how the parents bring their children and how they support their children, how they talk to their children, what they prioritize is extremely important in how even the most sensitive child can, handle themselves in such stress and not take such a grave step that could risk them losing their life on, just a matter of studies. Yep, that's true. Did you stop speaking, or is it? Yes, I did stop speaking. Okay, yeah, because what mostly happens is I heard somewhere that पेरेंट्स जो हैं वो अपनी कोई लग्जूरियस कार प्राडो या मर्सिडीज किसी के घर के ड्राइंग रूम में खड़ी करके नहीं दिखा सकते that we have this car. They can show off their children's grades in their drawing room, in other relatives घरों में जाके बता सकते हैं, ओ हमारे बच्चे ने तो ये स्कोर किया है. तो ये एक उनका शो ऑफ करने का एक तरीका है जो कि चला आ रहा है, और वो ही बच्चों को, like you said, not every child or children, they are not same equally. वही बात है. It's an entire matter of how everyone's different, and
parents don't seem to understand that. They tend to be like, oh, if that child is able to do it, why can't you do it? Yeah. When one might be more business track minded, whilst the other is more creative, but you can't put them in the same boat and expect them to both excel in the same manner or in the same frequency, right? So parents have a huge role in how they can actually foster a love for knowledge in their kids, and how they can actually create this safe space for them where they don't feel the need to compete consistently with their peers or their relatives, where it's made to show that yes, it's okay if you're getting great grades, we're really proud of you, but if you don't, we understand that wasn't your best moment or it wasn't your best subject, and it's okay, you're a human being. But unfortunately, children are not treated as human beings quite often. By a lot of Pakistani parents, they're treated as like a prize, that if our child, the greater the grades, the greater the value of the child. And this is true for a lot of girls in matters of how they are betrothed. Is it like they want to make their children get higher grades because if they get higher grades, they can make more money? Is it like that? Parents think that? That they will give their daughters the best. Yes, they do. They're like you know, हमने इतना पढ़ा लिया है और इतने अच्छे grades आ गए हैं और ये हो गया है, and therefore that means a better rishta will come for them. So sometimes their primary goal isn't that, you know, we want the daughter to get the best education for her sake. It's more so we want her to get the best education so that she could get the best rishta. So a girl that's done her matric will not get a rishta as good as a girl who's done her degree from LUMS, let's say. So that variation also comes in. So a lot of times parents just, you know, they educate their daughters just for this to such great degrees just for the sake of the fact that acha rishta aayega, and you know, if she's going to go to a better home, तो वो बच्चे की value भी education के basis पे increase करते हैं. And this is, I think that's perfectly fine in the sense that, like, yes, education and the degrees and everything, they do increase your inherent value in society, from in matters of work, in matters of family, whatnot. But depending on it to such a degree and emphasizing it to such a degree where the child absolutely breaks down and they feel like they have no self-esteem, that they're nothing if they don't do this, constantly comparing themselves, they're going to go down a road which isn't healthy for them and which may result in suicidal ideations and even attempts. Hmm. Well, I am really happy that you joined. Thank you so much. I hope you are busy and you made time for us. Thank you so much. It's perfectly fine. I'm literally at the studio right now. So it's all good. Yeah, I can imagine. I took a break, so it's fine. Okay, let's have. I hope I was a help to everyone in whatever possible ways. And the information, I'm sure, is pretty well known. Everyone has had their own experiences, but sometimes it helps to have a few you know, terms attached to it to give you a better idea that this isn't just with you, it's a general thing in society. It's because Pakistan is one of those Asian countries that follows a collectivistic form of, you know, building themselves and whatnot. So it's mainly we are society and society is us, rather than I'm an individual and my decisions are my own and they don't reflect on anyone. वो ordeal Pakistan में नहीं है, unfortunately. So Right. therefore competition, honor, pride, respect, all of this, your honor, your pride, your respect ties in with everyone around you. So yeah. Right. Okay. Well, thank you, and let's move to Samir. Samir, like Okay. Hafsa said that I'm gonna head now. yeah. Okay. Zinat Bye. said, Take care. yeah. Zinat has a comment for you, Hafsa. She said, Yes. thank you for sharing with us Let me a check. great experience, Hafsa. Not a problem, Zenith. My pleasure. I hope I was informative and that this entire session actually brings some kind of awareness. Huma Khan, thanks for amazing insights. Well, you're welcome. Thank you, Huma. Thank you so much. Okay, so Samir, when parents think that if our daughter or son gets higher education and it adds value to their proposal,
but most often than not, it happens that they are not practicing that field. वो शादी के बाद या शादी से पहले भी पढ़ाई के बाद they are not practicing their field, whatever they graduate in, right? I'm sorry, Samit, can you hear me? Yes. हाँ, तो कैन यू प्लीज दोबारा से पूछ सकते हो? मुझे आवाज थोड़ी सी कट रही थी. ओके, लाइक आई एम सेइंग कि जब वो पढ़ती हैं या बच्चे जो पढ़ते हैं, जो भी वो ग्रेजुएशन में उनका सब्जेक्ट होता है, वो उसको परसू नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते शादी के बाद, या उनको परमिशन नहीं मिलती, या वट एवर द रीजंस आर, वो फिर आपसा कह रही थी लेकिन उनकी एजुकेशन वैल्यू ऐड कर देती है उनके प्रपोजल के लिए कि हमारी बेटी ने, हमारे बेटे ने ये पढ़ा हुआ है तो हमें कोई अच्छा रिश्ता आएगा. वो अच्छा रिश्ता आ तो जाता है, बट दे आर सो कंजर्वेटिव that they don't allow their daughters to do the job or whatever, to get money or earn money to make a living. Okay. Yeah. So Wait, I'm sorry, can you continue? तो पेरेंट्स को ऐसा क्या बच्चे कह सकते हैं समझाने के लिए कि उनका करियर भी खराब ना हो, बिकॉज बहुत से ब्राइट स्टूडेंट्स भी वो आगे परसू नहीं करते जो वो आगे कर सकते हैं और बहुत अच्छा आगे करियर बन सकता है उनका. पेरेंट्स को ऐसा बच्चे ही बताएंगे ना, कोई थर्ड पर्सन आके नहीं उनको समझाएगा. तो बच्चे ऐसा क्या कहें अपने पेरेंट्स को कि वो समझें इस बात को कि हमारी शादी या फिर आगे वाली वो लाइफ इतनी जरूरी है जितनी हमारी आगे पढ़ाई भी है. तो बच्चों के लिए समझाना बहुत मुश्किल होता है. बहुत से डिक्टेटर्स होते हैं पेरेंट्स, और वो समझते नहीं हैं, वो बस इम्पोज करते हैं उन पर डिसीजंस. लेकिन सॉरी, मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन इतना लंबा हो गया, मैं समझ नहीं आ रही कि एग्जैक्टली क्या चीज आप पूछना चाह रहे हो. बच्चे अपने पेरेंट्स को क्या कहें अच्छा. समझाने के लिए कि हमें आगे पढ़ने दिया जाए या जॉब करने दी जाए एज कम्पेयर टू कि जहाँ शादी करनी है. एज कम्पेयर टू बेसिकली अपने पेरेंट्स को एक बच्चा किस तरह से समझा सकता है कि मेरे लिए एजुकेशन और जॉब उतनी ही जरूरी है जितनी आपके लिए मेरी शादी है, राइट? एग्जैक्टली. अच्छा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये कभी नहीं हो सकता. बच्चे पेरेंट्स को इतने आराम से, मतलब ये एक होप है, इट्स जस्ट होप कि मैं अपने माँ बाप को बताऊंगा वो समझ जाएंगे, समझ वो जाएंगे. लाइक मैं ये नहीं कह रहा कि बताना नहीं चाहिए अपने पेरेंट्स को कुछ भी, बट मुझे इतना पता है कि अभी तक मैंने पर्सनली, मैं हम तो फिर भी चलो बहुत प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं सारे. हमारे पास फोन्स हैं, हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ चुके हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं. जिंदगी थोड़ी बहुत मुश्किलात हैं, बट फिर भी काफी जिंदगी में आसानियां हैं. लेकिन अगर हम अपने इस 1% या 2% के बबल से निकल के बाकी पाकिस्तान को देखें, अगर हम सिर्फ यहाँ की बात कर रहे हैं, बाहर और भी मसले होंगे, बट अभी हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें क्योंकि ऑब्वियसली ये ज्यादा रिलेटेबल है. बट अगर हम इस 1% या 2% के बबल से निकल के देखें और बाकी दुनिया को देखें, तो उनके पास इतनी प्रिविलेज भी नहीं है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें. उनके बच्चे घर पड़े पड़े ज़ाया हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कर रहे होते. और फिर जब एंड में थोड़े बड़े होते हैं, इवेंचुअली वो फिर कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे या काम ही नहीं करेंगे, वो मतलब बेरोजगार, कंप्लीटली जिंदगी ज़ाया होना शुरू हो जाएगी, फिर वो गलत कामों में लग सकते हैं. बहुत इस तरह के इश्यूज आके जाके आते हैं. तो ज, अब आप ये सवाल जब आप मुझसे करो, तो आप ये दिमाग में जरूर असूम करके रख लो कि लार्जली वाइडली पेरेंट्स ने सुनना नहीं है इतने आराम से. तो उनको समझाने के तरीके होंगे बहुत, बट जहां तक मैंने खुद ही एक्सपीरियंस करके देखा है, जो बच्चों ने अप्लाई की अपने पेरेंट्स के ऊपर, कोशिशें की उनको समझाने की, उसके बावजूद पेरेंट्स की एक माइंडसेट है, उनके उनका एक स्ट्रक्चर होता है उनके दिमाग का, वो उनके बचपन से लेके उनके पेरेंटहुड तक बन चुका है. उनको नई चीजों के लिए एक्सेप्टिंग होना बहुत मुश्किल होगा. हाँ, अगर इफ दे वर, अगर वो शुरू से ही ऐसे लाइक उनको उनका ब्रॉटअप इस तरह से किया, मतलब उनके उनकी अपनी अपब्रिंगिंग पे करता. जैसे मेरे माँ बाप हैं, उनकी अपब्रिंगिंग थोड़ी रिजिड थी. उनके माँ बाप ने उन पे काफी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाली, जो कि उनकी एज के बच्चे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालना नहीं बनता था, लेकिन उन्होंने वो चीजें की बड़े होते वक्त.
तो नेचुरली वो यही कहेंगे कि अच्छा चलो हम भी अपने बेटे के ऊपर वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालेंगे जो हमारे माँ बाप ने हमारे ऊपर डाली थी। लेकिन अब हुआ ये कि जब when my dad was when he was he जब उनकी नई नई शादी हुई थी तो he started working at Citibank। तो सिटी बैंक में जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो वहां पे उस टाइम उस जमाने पे गोरे भी आते थे, ब्लैक पीपल भी आ रहे हैं, एशियंस भी आपके आ रहे हैं, चीनी भी उधर काम कर रहे हैं, इंडियंस भी आ रहे हैं। तो उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से मिल मिल के अपनी जॉब वाली जगह पे, अपनी वर्किंग स्पेस पे उन्होंने अपना एक दिमाग उनका आहिस्ता आहिस्ता खुलता गया, बिकॉज उन्हें ज़्यादा एक्सपोजर मिलता गया कल्चर्स के साथ। उन्होंने डिफरेंट लोगों से मुलाकात की, डिफरेंट लोगों को देखा, डिफरेंट लोगों से उनकी जिंदगियों के बारे में पूछा। तो उसकी वजह से उनका दिमाग काफी हद तक चेंज हुआ, जिसकी वजह से वो आज इधर हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं। मतलब उन्होंने मुझे जिन जिन चीज़ों के लिए इंकरेज किया है वो शायद ना हो पाता अगर वो उन लोगों से मिलते ना। तो आई थिंक एक्सपोजर एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, ना सिर्फ माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए भी एक्सपोजर बहुत बड़ी चीज़ है। अगर मैं घर में एक्सपोज्ड हो जाऊं बहुत ज़्यादा चीज़ों के साथ, मतलब अगर मैं ट्रैवल करूं या नए मुख्तलिफ लोगों से मिलूं, डिफरेंट मुख्तलिफ तरह की चीज़ें पढूं, तो मैं अपने पेरेंट्स से ज़्यादा मैं ओवर एक्सपोज्ड हो जाऊंगा, मैं अपने पेरेंट्स से ज़्यादा मेरा एक्सपोजर होगा। तो जाहिर सी बात है फिर जब वो मुझे कोई चीज़ कहा करेंगे कि चलो बेटा शादी करा लो, चलो बेटा, मतलब बहुत कन्वेंशनल बातें अगर ट्रेडिशनल करें मेरे साथ, तो वो मुझे ट्रेडिशनल बातें सुन के लगेंगी फिर थोड़ी सी अजीब कि यार ये तो दिस इजंट व्हाट आई हैड इन माइंड। मैंने तो जिंदगी में ये भी करना है, अभी वो भी करना है। सो आई थिंक एक्सपोजर का डिफरेंस जो है ना वो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जो कि रुकावट पैदा करता है एक बच्चे के दरमियान और पेरेंट्स के दरमियान। और प्लस टेक्नोलॉजी की वजह से आप मतलब किसी गरीब उधर भी चले जाओ ना बस्ती पे, वहां पे तो उनके पास सम हाउ टिकटॉक और ये फोन और ये मीडिया, उनको ज्यादा एक्सपोजर मिला हुआ है वहाँ के यंग जनरेशन को एज कम्पेयर टू देयर पेरेंट्स। तो आप मतलब जिस इलाके को भी उठा के देख लो ना, वहाँ पे बच्चे हमेशा हमेशा ओवर एक्सपोज्ड होंगे एज कम्पेयर टू अपने माँ बाप। तो उनको समझाना आई डोंट थिंक इतना इजी होगा ये सब कुछ, कि ओ मैंने एजुकेशन भी लेनी। और प्लस ऑनेस्टली बात बताऊं समीर, एजुकेशन जो है ना वो आजकल इट्स नॉट एवरीवन्स फर्स्ट प्रायोरिटी। अब वो अगर आप किसी को समझाओगे भी ना कि बेटा आपने पढ़ना है, पढ़ लिख के कुछ बनना है, एट दिस पॉइंट दे डू नॉट अंडरस्टैंड के इसका मतलब एजुकेशन का मतलब क्या है। इनफैक्ट इवन जब मैं छोटा होता था, तकरीबन पांचवें मतलब छठी जमात तक मुझे पढ़ाई से घिन आती थी और मुझे लिटरली उठा के स्कूल भेजा जाता था कि जाओ करो। और वहाँ टीचर्स भी बहुत अजीब थे, एनवायरनमेंट भी बड़ा मुझे अजीब लगता था। तो मुझे तकरीबन ए लेवल्स के बाद जाके, मतलब 12वीं 13वीं जमात के बाद जाके मुझे अंदाजा हुआ कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आप बेशक प्रिविलेज बैकग्राउंड से भी बिलोंग करते हो, अक्सर बच्चे होते हैं जो कि मे बी 12-13 साल की उम्र तक यही समझते हैं कि यार एजुकेशन, ये स्कूल, ये सारा बकवास है, आई डोंट वांट टू डू दिस। तो एक तो बच्चों को भी समझाने की जरूरत है दैट यू नीड एजुकेशन, वरना कल को अगर उनको नहीं पता चलेगा एजुकेशन की अहमियत का, कल को कोई भी उठ के कह देगा जाओ यार शादी करा लो, और वो कर लेंगे आराम से, और उनकी ऐसी लाइफ चलती जाएगी, वो फिर एक चेन बन जाएगी, वो फिर अपने बच्चों को ये करेंगे, उनके बच्चे फिर अपने। तो इट्स समथिंग जो हमारी नस नस के अंदर ना, हमारी एक एक हमारी रूट्स के अंदर ये चीज भरी हुई है। वी नीड टू चेंज दैट पहले, फिर पेरेंट्स तक आती है बात। हमारा कल्चर चेंज होना चाहिए। And secondly, if someone is having suicidal thoughts, whether they're because of depression or less marks or parents के हम्म। प्रेशर की वजह से, उन सुसाइड थॉट्स को दूर करने के लिए, वहां से उस मेंटल स्टेट से, उस मूड से निकलने के लिए क्या कर सकता है वो स्टूडेंट या वो बच्चा? ओके ओके। अच्छा, सबसे पहले हमें तो ये देखना होगा कि वो सुसाइडल थॉट्स आ कहाँ से रही हैं। और जाहिर सी बात है, जैसे अभी हफ्सा ने कहा था पहले कि नॉट एवरी वन कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ, मतलब हर कोई इंडिविजुअल जो है वो सारे यूनिक हैं। हर किसी का डिप्रेशन से डील करने का तरीका, परेशानियों से डील करने का तरीका फ़र्क होता है। मतलब एक बात जो मुझे रुलाए या मुझे परेशान कर दे वो शायद आपको ना परेशान करे, आप बोलोगे हाँ इतनी छोटी सी बात थी। तो हर किसी का एक तरीका मुख्तलिफ है। तो कल को, और प्लस डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है
कि जब वो आपके दिमाग में एक दफा, वो कीड़े की तरह है, बहुत छोटा सा कीड़ा है वो, एक आपके दिमाग में घुस जाए ना वो एक दफा, इट विल नॉट लीव यू अलोन जब तक आपको पता ना हो कि अंदर मेरे दिमाग में ये चीज घुस गई है एंड आई नीड टू टॉक अबाउट इट, या मुझे इसके बारे में किसी से बात करनी चाहिए। क्योंकि लंबे अरसे तक आपको लगेगा वो हाँ मैं बस दुखी हूँ थोड़ा सा, खैर है कुछ नहीं होता, लेकिन अंदर अंदर से आपके अंदर वो जो सुसाइडल थॉट्स हैं वो बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी, रातों रात आपको याद आता रहेगा कि यार मुझे जिंदगी नहीं अपनी पसंद आ रही, आई डोंट लाइक दिस, मुझे चिढ़ हो रही है लोगों से, मैंने अकेले रहना है। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता और इवॉल्व होती जाएगी चीज, और वो इवॉल्व होते होते इट टर्न्स इनटू सुसाइड अक्सर। तो इसका आई थिंक, और बल्कि इनफैक्ट इट्स आई थिंक अगर सुसाइड से डील करना है, तो सबसे पहले आपको ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि सुसाइड लोग क्यों करते हैं। क्योंकि यहाँ पे यूजुअली पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो एक कल्चर बन चुका है कि इसने इश्क में आके सुसाइड कर दी। मतलब जब भी आप खुदकुशी दिमाग में सोचते हो ना, अगर किसी सड़क पे जाके आम बंदे को बोलो कि अच्छा उस फलां ने खुदकुशी कर ली थी, तो उनके दिमाग में सबसे पहले ये सवाल आता है कि ओ इसका कोई आशिक तो नहीं था, उसने अपने आशिक के नाम पे वो अपने आप जान दे दी होगी। क्योंकि हमारे मीडिया ने इस तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है, हमारे मीडिया हमारा कल्चर मोस्टली बाकी मसलों के बारे में नहीं बात करता, या हम भूख की वजह से खुदकुशी करते हैं। मतलब यहाँ पे जो एज द सेइंग गोज कि क्या पाकिस्तानी भूख की वजह से खुदकुशी करेगा या किसी आशिक की वजह से खुदकुशी करेगा, और कोई वजह नहीं है, या फिर वो मजहब की वजह से बस। लेकिन अगर हम डिप्रेशन को देखें तो वो इन तीनों चीजों से ज्यादा बढ़ के और भी चीजों की थ्रू हमें अफेक्ट करती है। हमारी पढ़ाइयाँ, अकेला फील करना, अकेला, बेशक आपके साथ आपका कोई स्पाउस क्यों ना हो, आप शादीशुदा क्यों ना हो, लोग फिर भी अकेला फील कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप सिंगल रह के अकेले फील करो। लेकिन लोग ऑब्वियसली बोलेंगे यार वो तो शादीशुदा, उसको किस चीज की तन्हाई फील हो रही है, तो वो ऑटोमेटिकली इस तरह की बातों को देख के दूसरा बंदा बोलेगा यार मुझे कोई समझ नहीं सकता, मैं किसी को बताना भी चाहूँ तो समझ नहीं आ रही मैं किस तरीके से समझाऊं लोगों को। तो इससे बेहतर है चलो फिर चलते हैं यहाँ से, और फिर एंड में वो अपनी जान ले लेते हैं। ग्रेड्स की वजह से भी, प्रेशर में आके भी, मतलब बहुत बहुत ज्यादा रीजंस है। मतलब एक तो होता है ना कि जैसे बुखार है, अगर आपको बुखार चढ़ रहा है तो किसी इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, लेकिन अब आपको ये नहीं पता कहाँ की इन्फेक्शन है, गले की इन्फेक्शन है, आंखों की इन्फेक्शन है, नाक में इन्फेक्शन हुई हुई है, पेट में इन्फेक्शन हुई है। बुखार आपको एंड में चढ़ जरूर रहा है, लेकिन वो सिर्फ एक सिम्टम है एक एक्चुअल इन्फेक्शन की, जो आपके जिस्म पे कहीं पे भी हो रही होगी। सुसाइड भी ऐसी चीज है, वो एक बुखार की तरह है। वो आप सुसाइड को डायरेक्टली नहीं डील कर सकते उसके साथ, आपको पहले देखना पड़ेगा इन्फेक्शन कहाँ से आ रही है, वो दिमाग में क्या कीड़ा है जो आपको ये कह रहा है कि आप अपनी जान ले लो। तो उसके लिए फिर होते हैं आपके प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट, ट्रेन्ड साइकाइट्रिस्ट, जिनके पास आप जाते हो। और यहाँ पे एक स्टिग्मा बहुत अजीब अटैच हुआ है कि आपने एक साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना, क्योंकि अगर आप गए तो आप पागल हो। तो ठीक है, बेशक आप पागल हो, बोल दो मैं पागल हूँ, क्योंकि आपकी मेन जो हेल्थ है वो ज्यादा जरूरी है। लोग आपको कुछ भी करते हुए, आप एंड में जो भी चीज कर, मेरी आवाज आ रही है, आप जो भी चीज करोगे ना, आपको लोग, एक मिनट, फोन तो नहीं वाइब्रेट कर रहा? अच्छा सॉरी। आप We can आप hear you perfectly अच्छा fine. अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप एग्जैक्टली आप जो भी चीज करोगे ना कि लाइक फॉर एग्जांपल कि लाइक इफ यू टेल समवन कि मैं आई डोंट नो मुझे ये पसंद है, वो उस पे भी बोलेंगे अच्छा ये क्यों पसंद है, और तुम तो बहुत खराब लड़की हो, तुम चलो घर में बैठी रहो, या तुम्हें ये नहीं पसंद आना चाहिए, तुम तो आवारा लड़कियों से शादी कर रहे हो। अगर आप किसी चीज के मतलब आप कोई भी ओपिनियन शेयर करते हो किसी के बारे में, तो जस्ट नो कि इट्स नॉर्मल। अगर आपको लोग बोलें कि तुम तो पागल हो, तुम्हें शायद इसी साइकाइट्रिस्ट के पास जाना पड़ रहा है, बोलो ठीक है। क्योंकि एंड में आपका दिमाग इफेक्ट हो रहा है, उनका कुछ नहीं जाएगा, वो अपनी जगह जहाँ है उनको रहने दो। अगर आपको बाकी में किसी को जाके देखना है, किसी से हेल्प चाहिए, साइकोलॉजिकल हेल्प चाहिए, आप उस चीज को उनकी वजह से ना फोरसेक करो, आप अपने लिए जाओ कि अगर मुझे, और ऑब्वियसली सबके पास वो सहूलत मौजूद होती भी नहीं है, जिसकी वजह से ऑनलाइन थेरेपीज जो है वो कुछ लोग फ्री भी ऑफर करते हैं। मैं ऐसे बहुत ऑर्गेनाइजेशंस को जानता हूँ जो कि आपको फ्री ऑनलाइन थेरेपी दे सकते हैं, अगर आप उनके साथ टाइम सेट कर लो, और वो आपको कोई पैसा नहीं आपसे चार्ज करेंगे। लेकिन जो लोग थेरेपी नहीं भी ले सकते, उनके लिए मैं ये कहूंगा कि वो कम अज कम अपने मसलों को शेयर ना करना भूलें, क्योंकि आपके मसले दूसरे के लिए शायद इंपॉर्टेंट ना हो, दूसरे के लिए जरूरी ना हो, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आप अपने मसलों को इतनी अहमियत नहीं दोगे, और आप एक्सपेक्ट करोगे कि बाकी लोग मेरे मसलों को अहमियत नहीं दे रहे, तो चलो ठीक है मैं भी नहीं फिर देता, अब छोटा सा मसला होगा। तो बस आप ये समझ लो कि आप जो इन्फेक्शन का कॉज है ना, आप उसको अपने अंदर रहने दे रहे हो,
और वो आपके अंदर बैठे बैठे वो ऐसी चीजें पैदा कर देगी आपके दिमाग में कि वो आपसे भी नहीं संभाली जाएंगी। इसलिए जो भी मसला हो लोगों को बताओ, अपने पेरेंट्स को बताओ। अगर वो ऐसा मसला है जो पेरेंट्स को नहीं बताया जा सकता, जरूरी नहीं कि आप उन्हें बताओ, आप किसी दोस्त को बता दो, किसी रिश्तेदार को बता दो, किसी कजन को बता दो, लेकिन अपने अंदर से वो चीज बाहर निकालो। अगर वो अंदर बैठी रही तो एंड में जाके बहुत मसले पैदा करेगी। ये So Miri has a question. Miri, आप unmute कर लो mic and you can ask the question directly. Zinat and Huma, if you want to say something, you can unmute yourselves. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं पूछना चाह रही हूँ कि हम समटाइम्स लोगों से बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं, तो उनके साथ कैसे डील किया जाए? अच्छा, लोगों से चिढ़ना बहुत नॉर्मल बात है, ठीक है, मुझे भी चिढ़ होती है बहुत लोगों से, हर किसी को चिढ़ होती है। एक बूढ़े को एक जवान से भी चिढ़ हो सकती है, एक जवान को एक बूढ़े से, मतलब चिढ़ एक ऐसी चीज है जो एज नहीं देखती आपको। आप जिस एज के भी होगे, दुनिया में जिस हिस्से में भी आप रहते हो, एक इंसान के अंदर ये एक चीज इन बिल्ट हमारे अंदर बनी हुई है कि हमें चिढ़ चढ़ती है किसी ना किसी चीज से, जो कि नॉर्मल है, कोई मसला नहीं है। मतलब जैसे मुझे अगर कोई अगर मेरे पास बैठ के खाना खाए और वो मुंह खोल के चप 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 करके खा रहा हो, मुझे चिढ़ चढ़ेगी, लेकिन मेरे साथ कोई और बैठा होगा शायद उसे ना चढ़े। और अक्सर लोग होते हैं वो आराम से बैठ के सुनते रहते हैं ये आवाजें। तो हर किसी का एक चिढ़ने का जो वो है ना, लेवल है, वो फर्क है। तो अगर आपको चिढ़ किसी से चढ़े, आप उनको डायरेक्टली बताओ बजाय इसके कि आप अपने अंदर रखो। बिकॉज यहाँ पे लोगों को मेन मसला ये होता है कि वो कभी मुंह पे नहीं बात बोलते। अगर वो बोले भी तो वो ये सोच के बोलें कि यार शायद दूसरा बंदा माइंड ना कर जाए, तो कुछ नहीं होता। और प्लस वो ऐसे आप इस तरीके से तो बोल ही नहीं रहे। अगर तो आप, हाँ जाहिर सी बात है, अगर आप बदतमीजी से बोलोगे कि हाँ ये ना करो, मेरे सामने आइंदा ना करना, तो जाहिर सी बात है दूसरा बंदा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा कि यार फिर मैं इसके सामने फिर मैं कैसे बताऊं। खैर, तो अगर आपको किसी से चिढ़ चढ़ रही है, तो सबसे पहले तो आप देखो कि आपको चिढ़ क्यों चढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई एग्जाम्पल आप दे सकती हैं आपको जिस चीज से चिढ़ चढ़ रही है किसी से स्पेसिफिकली? अब एग्जैक्टली तो मैं कैसे बताऊँ, समझ नहीं आ रहा। कोई मिसाल आपके पास हो, मतलब जो आजकल आपको जिस इंसान से मसला हो रहा है, या आपको जो चीज ज्यादा चिढ़ा रही है, वो कहाँ से आ रही है, वो कौन कर रहा है, और आपको क्यों इतनी चीज को बॉदर करती है? मुझे कोई चीज़ रोकने पे। अच्छा, कोई चीज रोकने पे, मसलन कि अगर कोई कहे कि आपने बाहर जाना, तो अगर वो कोई बोले कि आपने नहीं जाना। जी। हम्म, अच्छा, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको चिढ़ एग्जैक्टली क्यों हो रही है। और आप ये अपने आप से पूछो कि अगर उस इंसान की जगह कोई और इंसान होता और वो यही बात करता, तो क्या आप उसकी बात से भी चिढ़ते इसी चीज से? तो क्या वो उस इंसान में इशू है जिससे आपको चिढ़ हो रही है, या उस चीज से इशू है आपको? ये पहले आपको देखना पड़ेगा। तो आप नंबर वन, सबसे पहले तो आप ये चेक करें कि लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कोई मेरा दोस्त आके कोई बात कहता है और मुझे उस चीज़ से बड़ी चिढ़ चढ़ती है, लेकिन अगर कोई और बंदा आके मुझे वो बात बोलेगा तो शायद मुझे वो चीज़ ना चिढ़ाए। इसका मतलब है कि मेरा मसला उस चीज़ से नहीं है, मेरा मसला उस इंसान से है जिसने मुझे तंग, जो मेरा दोस्त है। तो मुझे फिर आगे, जी जी। हाँ, तो फिर मुझे, ऐसे ही है। बिल्कुल, तो मुझे आगे जाके फिर ये देखना चाहिए कि उस इंसान के साथ मेरा क्या गिला है, क्या शिकवा है, कि मैं उससे क्यों चिढ़ रहा हूँ स्पेसिफिकली। हाँ, लेकिन अगर इंसान के साथ गिला शिकवा नहीं है और मुझे सिर्फ उस हरकत के साथ गिला है, बेशक वो कोई भी करे, बेशक वो मेरे पेरेंट्स करें, मेरे दोस्त करें, मेरा कोई कॉलीग करे, अगर तो मुझे वो हैबिट ही नहीं पसंद किसी इंसान में देखना, तो फिर मैं ऑटोमेटिकली अपने आप को कोशिश करूंगा कि मैं उससे दूर रहूं। मतलब जो इंसान मुझे पता है कि वो इस तरह की हरकतें ज्यादा करता है, मैं उनके पास ही नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो मेरी अपनी मेंटल हालत के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, अगर वो ऐसा इंसान है जो आपके घर में रह रहा है और फिर वो ऐसी हरकतें कर रहा है जो आपको नहीं पसंद आ रही, तो बेस्ट तरीका यही होता है कि आप दूसरे इंसान को बिठाओ और बात करो, बजाय इसके कि आप अपने अंदर उस चीज को लेके बैठे रहो। बिकॉज उससे होगा ये कि आप भी चिढ़ना शुरू हो जाओगे। चिढ़ तब डेवलप होती है आपके अंदर जब आप एक इशू को एड्रेस नहीं करते। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं बोल दूंगा ना। आपने गौर किया होगा, आपको किसी चीज का भी गुस्सा आ रहा हो, आप बंदे को बता दोगे कि मुझे ये चीज आपकी हरकत नहीं अच्छी लगी, आप अंदर से ठंडे हो जाओगे, आप इजी हो जाओगे और आप हल्के हो जाओगे। लेकिन अगर वो इंसान कोई हरकत करी जाए और आप उनको कभी ना बताओगे, तो आप नोटिस करना कि आपका उनकी तरफ रवैया बहुत खराब होता जाएगा। आप उनसे लड़ पड़ोगे, आप उन पे चीखा करोगे, आप उनको कभी उनको उनको आप उनको तंज किया करोगे, आप उनसे कोई बात नहीं किया करोगे, और अंदर अंदर से वो आपकी ज़हनी हालत के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए बेहतर है कि जब भी आपको कोई चीज़ चढ़ा रही हो,
या तंग कर रही हो, आप उसे डायरेक्टली बड़े आराम से बता दो कि मुझे ये चीज आपकी नहीं अच्छी लगती जो आप कर रहे हो, तो इसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। ये है। थैंक यू सर। नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम। हुमा, आप कुछ कह रही थी? बट सर हम ये मोस्टली कहते नहीं है किसी से भी कि अगला बंदा गुस्सा ना कर जाए, इस तरह मतलब कि अवॉइड करते हैं कि हमारा रिलेशन खराब ना हो जाए दोस्तों से या इस तरह, हालांकि हमें कह देना चाहिए सर, फिर भी हम नहीं कहते। तो सर इसका क्या करना चाहिए फिर कि ऐसे अगर हम उनको उनकी नेगेटिव व्यूज जो हैं वो सारे बताएंगे तो फिर वो हमें छोड़ के चले जाएंगे, या इस तरह हमें ये डर होता है। अच्छा, नहीं देखो, आपका क्या नाम है? सर जीनत। जीनत। अच्छा जीनत, अब आप बात सुनो मेरी कि लाइक जब भी आपको किसी चीज का डर हो ना कि ये इंसान मेरी लाइफ से मुझे छोड़ के अगर चला गया, या अगर ये इंसान मुझसे बात ना करे, या एक दो दिन के लिए गायब हो जाए, या साल के लिए गायब हो जाए, या चला ही जाए, तो आप बस ये समझो कि आप उस इंसान पे फिर डिपेंडेंट हो, इमोशनल डिपेंडेंस आपको है। जैसे बिलफर्ज, अगर मेरी एक दोस्त है या मेरे दोस्त है, मुझे मुझे बहुत अजीज है, वो मुझे अच्छे लगते हैं मेरे दोस्त, और मुझे उनसे बहुत बहुत अटैचमेंट है। तो मुझे पता है कि अगर मैंने इसका दिल दुखाया तो ये इवेंचुअली थोड़े तंग होंगे मुझसे, लेकिन मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। तो अगर आपको किसी इंसान का डर है कि ये इंसान मुझे छोड़ के जाने लगा है, तो इसका मतलब है कि वो फिर आपकी लाइफ में वैसे शुरू से उस तरीके से नहीं थे जिस तरह से आपको लग रहा था। हमेशा दोस्ती, प्यार, ये जितनी भी चीजें हैं ना जिसकी वजह से लाइफ लोग आपकी लाइफ में है, ये दिमाग में आप याद रखो कि अगर तो वो आपकी लाइफ में दिल से हैं, तो आप उनको कभी भी कोई बात बोलोगे वो छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर वो आपकी लाइफ में दिल से नहीं है, और वो अपने जेन्युइनली आपकी लाइफ में उस तरह से नहीं है, या वो सिर्फ आपसे फायदा चाह रहे हैं, फायदा जरूरी नहीं पैसों वाला हो या कोई इस तरह का हो, फायदा कुछ और भी हो सकता है कि शायद वो बोर हो रहे हैं, तो बोरियत दूर करने के लिए वो कहते हैं यार चलो मिल लेते हैं आज जाके, लेकिन उन्हें कदर उस तरह से नहीं है। तो अगर उन्हें असली वाली कदर नहीं है ना, तो वो आप उन्हें कोई बात नहीं भी बोलोगे वो छोड़ के चले जाएंगे। तो अपने दिमाग से सबसे पहले आप ये निकाल दो कि कौन मुझे छोड़ के जा रहा है और कौन नहीं। अगर उन्हें आपकी लाइफ में रहना है वो रहेंगे, अगर उन्हें छोड़ के जाना है तो उनको इतना सा भी नुक्ता मिल जाए वो छोड़ के चले जाएंगे, जो कि अच्छी बात है। उन्हें को खुदा हाफिज। क्योंकि वो फिर इससे होता है कि आप फिल्टर करते रहते हो, जैसे पानी फिल्टर के अंदर से गुजर के साफ नहीं आता रहता, इस तरह से जो आपके दोस्तों का सर्कल है ना, उसका भी एक फिल्टर होना चाहिए, जिसके अंदर आप इवेंचुअली चेक करो कि कौन मेरी लाइफ से जा रहा है कौन नहीं। जो पक्के लोग होंगे ना वो आपकी लाइफ में हमेशा रहेंगे। तो ये सोच के कभी ना अपने दिल में कोई चीज रखना कि मैं ये इसे नहीं बता सकती। मुंह फट हो जाओ, बताओ, और उनको जो भी ऑनेस्ट बात है बताओ, क्योंकि जब तक ऑनेस्टी नहीं होगी ना तो फिर वो दोस्ती बेसिकली ऑनेस्टी के बेसिस पे नहीं है, वो एक झूठ के ऊपर बनी हुई है। मतलब अगर मेरे साथ कोई दोस्त है और वो मोटी हो रही है और वो मुझसे कहती है कि अच्छा समीर मैं मोटी तो नहीं हो रही, और मैं उसको बोली जाऊँ नहीं नहीं तुम तो बहुत सुक्की हो, तुम तो बहुत पतली हो, खाई जाओ जितना खाना है, तो मैं उसको झूठ बोल के उसका दिल तो रख रहा हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं उसको साथ उसकी हेल्थ को मजीद खराब करी जा रहा हूँ, वो झूठ बता बता के कि नहीं नहीं तुम ठीक हो खाई जाओ। तो मैं सिर्फ कि चलो मैं उसका दिल ना दुखाऊं, वो बेचारी परेशान ना हो जाए, तो मैं उसे कही जाता हूँ वो पतली है खाई जाए। एंड में नुकसान उसका हो रहा है, और जब उसका इवेंचुअली नुकसान होता जाएगा ना एंड में, वो फिर मुझसे पूछेगी कि समीर तुम तो झूठ बोल रहे थे मुझसे। तो ऐसी दोस्ती का क्या फायदा जिसमें आप किसी को खुल्लम खुल्ला बता नहीं सकते कि यार ये मसला है, इसको ठीक करो। तो ये है। सर एक मसला ये भी है कि हम क्लास में होते हैं जब, तो बॉयज मतलब कि या ये कि हमें कोई देख रहा है कि हम मतलब कि कोई अच्छा काम भी कर रही हो या कोई अच्छी हम्म। बात भी कर रही हो, तो क्लास में मुझे ये इशू होता है कि मुझे कोई देख रहा है तो मैं ना जरा नर्वस सी हो जाती अच्छा हूँ। अच्छा। तो तो सर उससे मुझे ये बहुत इशू होता है अच्छा। कि कोई मुझ पे मतलब कि कोई बात करेगा या मुझे कोई डिस्कशन के तौर पर लेगा, इस तरह मुझे फिर अच्छा नहीं लगता, तो मैं फिर क्लास में ना कम पार्टिसिपेट करती हूँ। तो हम्म। इसका मुझे बहुत आता है, क्योंकि पहले मैं कॉलेज लेवल तक बहुत अच्छी थी, मतलब कि बहुत पार्टिसिपेट करती थी, हर चीज़ में अव्वल थी, तो अब यूनिवर्सिटी में आके मुझे ये इशू बहुत आ रहा है, तो प्लीज़ अच्छा इसमें अच्छा। मुझे गाइड कर सकते हैं। हाँ हाँ। अच्छा सर देखो। असल में जी जी बॉयज बताओ। इस तरह के होते हैं ना कि हमें अवॉइड करना पड़ता है, इस तरह की सोसाइटी हमें इस तरह नहीं की नहीं मिली नहीं, हुई है, ये बिल्कुल सारी बिल्कुल, चीज़। मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को। आप मुझे बताओ, आपको औरत मार्च का आइडिया है? क्या सर? औरत मार्च। सर आवाज नहीं आ रही आपकी।
एक सेकंड, अब आ रही है? यस सर। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ आपको औरत मार्च का आइडिया है? यस सर। औरत मार्च पे आप गई थी? नहीं सर। क्यों? सर अलाउ नहीं है ना। अच्छा, अलाउ नहीं। मैं बताऊं क्या, देखो, कभी भी, अच्छा, एक मेरे लिए फेवर आप जरूर करना, जब भी आप अगला औरत मार्च आएगा ना, आप बेशक कोई बहाना बना के निकलो, दोस्तों के साथ जाओ, या उस एरिया से सिर्फ गुजरो ना, आपने वहां अगला जब भी औरत मार्च आएगा आपने जाना ही जाना है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, एक अभी आपने बताया ना कि हमारी सोसाइटी में बॉयज इस तरह के हैं जो आपको कोई ना कोई बात छेड़ देंगे, या एक बाकी आप या शायद आपकी जानने वाली जो दोस्तें हैं उनको बात छेड़ देंगे। तो वो एक बहुत ना एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है कॉलेज के अंदर, या अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो वहां पे प्रेशर बिल्डअप हो जाता है कि यार ये मेरी कॉलीग को या मेरी क्लास फेलो को ये बातें बोल रहे हैं लड़के, या वो उन लड़कों के साथ इस तरह के मसले में फंस गई थी तो शायद मैं भी ना कल को ऐसी चीजों में फंस जाऊं, या कल को कोई लड़का मुझे ना कोई इस तरह की फजूल बात कह दे। तो ऑटोमेटिकली आपका जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो गिर जाता है। और बेशक वो असल में कह रहे हो आपको कुछ या ना भी कह रहे हो, आपको फिर भी फील होता है कि यार मुझे तो अंदर से बहुत डाउट हो रहे हैं कि मैं पता नहीं, आपका दिल ही नहीं चाहेगा स्कूल जाने का, आपका दिल कुछ करने का नहीं चाहेगा, आपका दिल चाहेगा कि बस आप किसी कोने में जाके छुप जाओ। और ये इश्यू बताऊं क्या, एक सबसे मजे की बात है कि ये लड़कियों के साथ नहीं सिर्फ होता है, ये लड़कों के साथ भी बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि मैं बल्कि लड़कियों के साथ बेशक बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये इश्यू सबकी लाइफ में है। मैं जब स्कूल में था तो मुझे अक्सर बहुत चीजों से डर लगता था कि मैं मुझे बोलने का दिल नहीं चाहता था किसी के साथ, क्योंकि मुझे लगता था, क्योंकि मैं बचपन में बहुत फिजूल बातें अक्सर करता था, मतलब लोग सुन के कहते थे कि यार ये पागल है। तो जो मेरे क्लासमेट्स होते थे वो मेरी काफी चीजों में बड़ा मजाक उड़ाते थे। अगर मुझे टीचर कहती थी उठ के पढ़ो, ये रीड करो, तो मुझसे रीड नहीं किया जाता था, क्योंकि मैं सोच रहा होता था कि शिट, अगर मैं अब मैंने कोई मिस्टेक की तो कोई हंस पड़ेगा। लेकिन फिर बाद में मुझे अंदाजा हुआ कि मैं बेशक मिस्टेक करूं या ना करूं, लोगों का ओपिनियन होगा उसके बारे में। अगर कोई एक्टर या एक्ट्रेस टीवी पे आती है, आपको उसका जोड़ा पसंद आया जो उसने पहना हुआ है, कोई ड्रेस वगैरह, तो आप दिमाग में सोचती हो ना कि हाँ ये बहुत अच्छा लग रहा है इसके ऊपर। जाहिर सी बात है, अब आपके साथ कोई बैठा होगा, आप उससे पूछोगे अच्छा आपको कैसा लग रहा है इस एक्ट्रेस का ड्रेस, तो वो बोलेंगे नहीं मुझे तो बस एਵੇਂ ही लग रहा है। तो हर किसी का एक अपना ओपिनियन है एक सेम चीज के बारे में। तो जब भी आप किसी भी सोशल सेटिंग में हो, स्कूल में हो, कहीं पे भी हो, बेशक बाहर दोस्तों के साथ निकली हुई हो या घर पे हो जहाँ पे रिश्तेदार आए हुए लोग आए हुए हैं, कभी भी ये सोच के ना वहां बैठना कि अच्छा मैं कल को कुछ बोलूंगी या मैंने कोई भी हरकत की तो लोग बहुत नोटिस कर रहे हैं, उसे नोटिस सारे करेंगे। अगर आपको लग भी रहा है ना कि लोग नोटिस नहीं कर रहे, लोग नोटिस कर रहे हैं। लेकिन आप अपने आप से ये पूछो कि उस जिंदगी का क्या फायदा अगर आप उसे फुली नहीं जी सकती, अगर आप अपने दिल वाली बात नहीं कह सकती, अगर आप कॉन्फिडेंसली आराम से बैठ के सुकून से बैठ के लोगों के अंदर बैठ के बात नहीं कर सकती, तो क्या फायदा है? तो इससे बेहतर है कि उनको चीजों को छोड़ दो, जाने दो। लोगों ने जो सोचना जो कहना है उन्हें कहने दो। इवेंचुअली बस आप ये दिमाग में रखो कि जो लोग ज्यादा बोलते हैं ना, या जो लोग कॉन्फिडेंटली अपना ओपिनियन देते हैं, लोग उल्टा उनसे डरना शुरू कर देते हैं। लोग उल्टा उनके साथ दोस्त बनना चाहते हैं, लोग उन्हें कुछ नहीं कहते, उन्हें तंग नहीं करते, ज्यादातर तंग उन्हें किया जाता है जो ज्यादा चुप रहते हैं। तो अगर आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट होना शुरू कर दोगी, बल्कि इनफैक्ट एक दो फिजूल बातें भी कर दोगी ना, या पागलों वाली हरकतें थोड़ी कर दोगी क्लास में, आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाओगी, आपको कोई कुछ नहीं उसके बाद कहेगा, क्योंकि उन्हें पता होगा कि यार ये तो बहुत चिल है, इसे कुछ नहीं कहना। लेकिन अगर आपको इस चीज से मसला हो रहा है कि अगर कोई बॉय आपको तंग कर रहा है या हरास कर रहा है, या आपको कोई आपका नंबर लेना चाह रहा है या घूरियां करा रहा है। एक होता है मजाक में कोई बात करना, जैसे आप दोस्तों के साथ बैठे हो, कोई लड़के ने आपसे आके बोला है कि मुझे पेन दे दो या पेंसिल दे दो, या कोई मजाक में आपसे, चलो वैसे भी आपसे पूछता है कि आपका क्या हाल है, आप ठीक हो, दिन आपका ठीक जा रहा है, बड़ी परेशान लग रही हो सुबह से, तो कुछ नहीं होता, वो जेन्युइनली शायद जानना चाह रहे हैं। आई एम श्योर आपका भी काफी दफा दिल चाहता होगा किसी परेशान इंसान को देख के कि यार मैं इससे जाके पूछूं ये ठीक है या नहीं। तो कुछ ह्यूमन चीजें हैं वो जेन्युइन होती हैं और वो दिल से आ रही होती हैं, क्योंकि हम सारे इंसान हैं। लेकिन अगर कोई तंग कर रहा है आपको, और अगर आपको कोई मैसेज कर रहा है और कह रहा है कि मुझे अपना फोन नंबर दो या मेरे साथ बाहर चलो चलो हम चलें, तो फिर उस चीज को लाइटली नहीं लेना और उस चीज को दबाना भी नहीं है, उस चीज को डायरेक्टली अथॉरिटीज को जाके बताना जो उस कॉलेज या स्कूल की हैं। और अगर उस कॉलेज या स्कूल की अथॉरिटीज कुछ नहीं कर पा रही, तो फिर आप उससे हायर बंदे को ढूंढो जो करे, लेकिन आपने इस चीज को रोकना नहीं है। लेकिन अगर नॉर्मल होके कोई बात कर रहा है तो फिर
आप उनके साथ बात करो, अपने आप को चुप ना रखो कभी भी। ओके इंशाल्लाह सर, मैं ट्राई करूंगी। थैंक यू जरूर। सर। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। और ये ट्राई चीजें कर करके ही होती हैं, ये अचानक मैं ये नहीं कह रहा कि आप बटन दबाओगे और अचानक वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। लाइफ इस तरह से नहीं होती। चीजों पे जितना काम करोगे उतना ही ज्यादा वो आपके अंदर चीजें आती रहेंगी। अगर आप मतलब हर चीज, मतलब ये एक जिम जाने की तरह है। आप जितना अपनी बॉडी को हेल्दी रखोगे, जितनी एक्सरसाइज करोगे, उतनी आपको अच्छे रिजल्ट्स नजर आएंगे। अगर आप वजन लूज करना चाह रहे हो और आप उठ के एक 10 मिनट की वॉक भी नहीं कर सकते और आप फिर भी कह रहे हो कि मैं वजन क्यों नहीं लूज कर पा रही या कर पा रहा, तो इसका मतलब है कि आप उस चीज को इतने डेडिकेशन के साथ नहीं कर रहे। तो अगर आपके अंदर, अगर आप चाहते हो कि आप में कॉन्फिडेंस आए और आप लोगों के मुंह पे बात कह सको और ज्यादा डरो मत किसी चीज से, और आप बगैर किसी भी मुश्किल के आप एक जगह में जाके बैठो और आपके दिमाग में ये बिल्कुल ना ख्याल है कि वो लोग क्या सोच रहे होंगे, तो उसके लिए आपको दिन ब दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को भी ओपन करना पड़ेगा। आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करोगे तो ये चीज चलती रहेगी। इसलिए उस चीज को ब्रेक करने के लिए आपको अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। आप ऑटोमेटिकली देखना, आप अगर आप इस रूटीन को जारी रखोगे ना, तो शायद 1-2 साल तक आप अपने आप को पहचान भी ना पाओ। आपको शिट में इतनी चेंज हो गई हूँ, और लोग भी तुम्हारे आपके इर्द गिर्द बोलेंगे कि वो तो आप इतनी चेंज लग रही हो, आपके आपके तौर तरीके इतने चेंज लग रहे हैं। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता चेंज आती है, लेकिन अगर आप खुद करना चाहो तो ये है। हुमा, आप कुछ कह रही थी? हुमा खान। हुमा एंड दानियाल। दानियाल, आपका एक क्वेश्चन है? सर अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम मेरा अक्सर सलाम। ये प्रॉब्लम होता है कि अब मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे आ गया हूँ, तो मेरी हरकतें थोड़ी बच्चों वाली होती हैं। तो जब भी कोई मैं काम करता हूँ तो घर वाले यही बोलते हैं कि मैच्योर हो जाओ आप, इन कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ में आ गए हो। कोई कजन आ हाँ। जाता है उसके साथ में हंसी मजाक करने लगा, तब भी घर वाले आके ये बोलते हैं कि मैच्योर बन जाओ। कुछ भी काम कर हम्म। लो तो घर वाले भी यही बोलते रहते हैं, कोई बाहर वाला भी यही बोलता रहता है। तो इससे मैं हम्म। ज्यादा अपसेट हूँ हम। नहीं नहीं, अच्छा अब तो तो। मैं ट्राई भी करता हूँ, मैंने अभी कितनी देखी है। यार नहीं, देखो मेच्योरिटी ना जो चीज़ होती है, मैं मुझे इस चीज़ पे बहुत, इस टॉपिक के बारे में मुझे बड़ा अच्छा पता है, क्योंकि मैंने खुद ये बहुत अपनी जिंदगी में ये बड़ा सुना है, मेच्योर हो जाओ, मेच्योर हो जाओ, मेच्योर हो जाओ। मतलब आप लिटरली कोई, अब घर से आप अगर आप ये कह के निकलो कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, लेकिन अगर आपको 5 मिनट ऊपर लगे तो घर में पहुंचते साथ आपको ये सुनने का मिलेगा, मेच्योर हो जाओ। या अगर कोई आप हंसी मजाक कर रहे हो, मतलब वो बेसिकली, मैं आपको बताता हूँ कि मेच्योरिटी, मेच्योरिटी क्या होती है। मेच्योरिटी एक बंदे का मेच्योर होना जो है ना, मेच्योर होने का मतलब ये है कि आप जिंदगी को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख सको। मेच्योरिटी एक स्पेसिफिक चीज नहीं है। मेच्योरिटी आप प्लेट में रख के कह नहीं सकते कि ये मेच्योरिटी है, ये देख लो सारे मेच्योरिटी। मेच्योरिटी हर इंसान में एक फर्क तरह की होती है और एक अलग तरह की होती है। मैंने 70-60-70 साल के बाबों को भी देखा है जो मेरे हिसाब से मेच्योर नहीं है। मतलब आप पॉलिटिशियंस को देख लो, ये मेच्योर हरकत है जो वो कर रहे हैं, पूरा मुल्क उनकी वजह से हिल जाता है, और वो कर ही जाते हैं। और वो अपने दिमाग से, अपने मतलब अपने अंदर से निकलते ही नहीं, बाहर निकल के देखते नहीं कि जिंदगी में क्या हो रहा है लोगों की। वो अपने जहाजों में ट्रैवल कर करके होटल्स में जाके रह रहे हैं, दुनिया घूम रहे हैं। ठीक है, मुल्क भी जहां तक चला सकते हैं चला रहे हैं। करप्शन क्या चीज है? इमेच्योरिटी है। ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये इमेच्योरिटी होती हैं, और ये हर एज में पाई जाती हैं। तो अगर आपको कोई कह रहा है ना कि मेच्योर हो जाओ, तो आप ये सबसे पहले आप ये ना समझो कि शायद आप ही इमेच्योर हो और आपके इर्द गिर्द बाकी इमेच्योर हैं। कभी कभी पेरेंट्स भी बड़े इमेच्योर हो रहे होते हैं जब वो अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा मेच्योर हो जाओ। तो उनके, और प्लस वो मेच्योरिटी, वो इसलिए तुम्हें आपको कह रहे हैं कि आप मेच्योर हो जाओ, क्योंकि उनके दिमाग में ये डर होता है कि शायद हम अपने बच्चे को नहीं संभाल सकेंगे जब हम बूढ़े हो जाएंगे। मतलब वो डरा रहे होते हैं एक तरह से। तो कभी इस चीज को माइंड ना करना, कभी ये ना समझना कि आप किसी से कम हो। जितना आपने बचकाना हरकतें आपने करनी है कॉलेज में, घर पे, आप करो। लेकिन एक चीज मेच्योरिटी ये होगी कि मैं सुबह के टाइम काम करूं और रात को अपने दोस्तों के साथ पार्टियां करूं।
मैं सुबह को अपने पेरेंट्स को टाइम दूं थोड़ा सा, और फिर मैं रात को अपने दोस्तों के साथ शाम को जाके मिलूं। मैं सुबह को क्या कहते हैं, मतलब कोई भी काम, कल को रिश्तेदार मेरे घर आ जाए तो मैं उनके साथ भी बैठूं और साथ में मैं अकेला भी टाइम अपने कजन्स के साथ गुजारूं। मेच्योरिटी में आप सब कुछ एक साथ लेके चलते हो। मेच्योरिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल एक डंडी की तरह खड़े होके ऐसे बैठ जाओ और आप बिल्कुल स्टिफ हो जाओ। ना आप हंसो, ना आप अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आओ। मुस्कुराहट लाना और मेच्योर होना, ये दोनों साथ साथ भी चल सकती है। मेरा मतलब कहना ये है कि जस्ट बिकॉज आप अपनी लाइफ में फन कर रहे हो ना, उसका मतलब ये नहीं है कि आप इमेच्योर हो। तो अपनी लाइफ में से फन को ना निकालो, मजे को ना निकालो, लेकिन अपनी लाइफ में सब कुछ एक साथ लेके चलोगे तो उनका ऑटोमेटिकली वो कहना बंद कर देंगे आपको। बस ये है। लेकिन अगर आप सिर्फ मजे ही मजे कर रहे हो और आप कह रहे हो वो देख रहे हैं कि यार ये तो पढ़ ही नहीं रहा है तो ये भी नहीं कर रहा, तो वो माँ बाप ये करते हैं। मेरे माँ बाप खुद अभी तक करते हैं। मतलब मैं 30 साल का होने वाला हूँ और मुझे माँ बाप मेरे देख के ये कहते हैं कि मेच्योर हो जाओ। तो वो, और अक्सर उनको चीजें नहीं पता होती कि ये क्या कर रहा है। उन्हें उन्हें अक्सर ये भी नहीं पता होता कि मैं हफ्तों हफ्तों तक दिन रात उठ के काम कर रहा हूँ अपना। उनको जो नजर आएगा वो उस पर जवाब दे देंगे। तो ठीक है, आप मान जाओ का उनको ठंडा कर दो। बस अपने आप को कह दो कि उन्होंने ये कहना है। माँ बाप के अंदर ये होता है अंदर कि वो टेंशन की वजह से कह रहे होते हैं। वो कभी भी आपको तंग करने के लिए नहीं कहते और ना ही वो कभी आपको नीचे दिखाने के लिए करते हैं। वो प्यार से कर रहे होते हैं। तो अगर वो कह भी दें, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, एज लॉन्ग एज आपको ये पता हो कि जो आप कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो। ठीक है सर, थैंक यू। मैं फिर इंशाल्लाह उस पर नोट करूंगा। हाँ, टेंशन नहीं लेनी किसी चीज की, बस ये देख लो। ठीक है। तो उसके अलावा ये भी है सर, अक्सर चीजें मैंने देखी हैं, मेरा छोटा भाई है माशाल्लाह, वो मेरे से ज्यादा एक्टिव है, वो हर चीज को जल्दी पिकअप कर लेता है। हम्म। लेकिन ये है कि वो थोड़ा रूडली हो जाता है। अब मैं तकरीबन ये नहीं बिजनेस वाली साइड पे नहीं आना चाहता, तो ना ही मुझे घर वाले लाना चाहते हैं। लेकिन हम्म। घर वाले मुझे अक्सर कहते हैं कि आप ये चीज को आपको भी आनी चाहिए। लेकिन मैं वो सीखता ही नहीं हूँ, ना मेरा अभी दिल करता है। तो मैं इस वजह से भी थोड़ा सा पीछे हट जाता हूँ कि ये चीज मैंने नहीं करनी। तो इसलिए भी थोड़ा डर आता है कि मैं थोड़ा शायद मेरे में इतनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जो मैं हट। आपका क्या नाम है? दानियाल? Yes. सजावल फ्री जी। दानियाल है आपका नाम? सजावल है, ये मेरे भाई का नाम है, दानियल। अच्छा, भाई का, अच्छा उसका सजावल। अकाउंट। अच्छा अच्छा, So, सजावल देखो, बात सुनो। अब बेसिकली सीन ये सजावल के, जब भी आपको कोई पेरेंट्स भी कहते हैं कि आप ये फील्ड चूज करो या ये पढ़ो, एक तो आप ये समझ जाओ कि वो गलती आप में नहीं है। वो गलती उस इंसान में है जो आपको फोर्स कर रहा है कि आप यही काम करोगे, इवन दो आपका शायद ना दिल चाहे वो करने का। जैसे बचपन से जी मुझे पहले बताया जाता था कि आप मेडिकल पढ़ो। अब मैं मेडिकल में इतना अच्छा नहीं था, मेरा दिमाग इतनी ज्यादा चीजों को एक साथ नहीं याद रख सकता, और प्लस मेडिकल ऐसी चीज है कि अगर आप मेडिकल में चले जाओ ना, तो आपसे एक्सपेक्टेड ही होता है कि आप पेशेंट्स का ख्याल रखोगे, मरीजों को बचाओगे। तो अगर आप लोगों के कहने पे मैं अगर मेडिकल पढ़ लेता और मेरे दिमाग में कुछ ना बैठता रहता, और मैं कल को किसी पेशेंट के सामने खड़ा हुआ हूँ, उसको मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, तो वो तो मर भी सकता है मेरी वजह से। तो इतनी बड़ी डिसीजंस होती हैं जो आपको आगे जाके चेंज करती हैं, इसलिए कभी वो ना करना जो आपको खुद भी पता है कि ये मैं सोसाइटी को नहीं दे पाऊंगा। मतलब अगर आपको पता है कि बिजनेस के अंदर आप अगर आपने पैर अपना डाला और अब शायद वो आपके लिए ना वर्कआउट कर रहा हो, तो कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना। उनको साफ साफ कह दो कि मुझसे ये नहीं होगा। आप वो करो जो आपको इंटरेस्ट देता है। और अगर आपको वो फिर भी थोड़े बात पे अड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं, नहीं नहीं तुम यही करोगे, या तुम उसकी तरह क्यों नहीं करते अपने भाई की तरह, या फ्लांटम का, तो आप ये अंडरस्टैंड करो कि हर किसी का तरीका, चीज़ों को समझना, चीज़ों का जवाब देना, चीज़ों को पढ़ना, हर किसी का मुख्तलिफ होता है। कुछ चीज़ों में आप शायद बहुत अच्छे हो गए, लेकिन शायद कुछ चीज़ों में आप अच्छे ना हो। तो मेरा भी ये है, कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा हूँ, कुछ चीज़ों में मैं नहीं अच्छा। और ये इट्स ओके, कोई मसला नहीं इस चीज़ में। तो आप वो देखो कि आप किस चीज़ में अच्छे हो और आप उसके मुताबिक अपनी फ्यूचर डिसाइड करो, क्योंकि आपने अपनी फ्यूचर गुजारनी है। पेरेंट्स तो चलो बुढ़ापे में एक जगह जाके बैठ जाएंगे, वो फिर आपको देखेंगे बढ़ते हुए। तो आपने देखना है कि आपके लिए बेहतर क्या है। ठीक सर, हम्म, थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, थैंक यू। जी हुमा, आप अपनी ओपिनियन दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
सर किस चीज़ से रिलेटेड, हर पॉइंट से रिलेटेड या नहीं नहीं, जो भी आपका दिल चाहे आप कुछ भी पूछ सकते हैं। सर मैं जस्ट ये जो क्वेश्चंस कर रहे थे सारे उसका अपने अकॉर्डिंगली आंसर दे रही थी। जैसे अच्छा अच्छा सबसे अच्छा। पहले जी, जैसे सबसे हाँ। पहले वो मैरी नहीं, किसने पूछा था? जीनत ने शायद पूछा था। नहीं, ये मैरी ने पूछा था कि हम लोगों से चिढ़ जाते हैं। तो इसका मैंने ये आंसर दिया था जब मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ कि सिंपली हमें लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। सपोज अगर एक चीज़ मैं एक तरह से करती हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि सारे उसी तरह से करेंगे। बिल्कुल। और अगर जो मैं तरीका यूज़ करती हूँ उसमें मेरा ब्रॉटअप है, उसमें मेरी एनवायरनमेंट है, मेरी थिंकिंग है, बहुत सारे फैक्टर हैं। जैसे आपने एग्जांपल कोट की है कि अगर कोई वो यानी मुंह खोल के खा रहा है तो हो सकता है उसने चीज़ ही ये देखी है, उसे पता ही नहीं है कि बिल्कुल मुंह बंद करके भी खाते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। उसे ये चाहिए, यानी हमें अडेप्टिव होना चाहिए। अगर हम एक एनवायरनमेंट में जा रहे हैं एक से दूसरे में, तो सपोज अगर मुझे मुंह खोल के खाना खाने की आदत है, मैं कहीं जा रही हूँ तो देख रही हूँ वहां नहीं है, तो मुझे अडेप्टिव होना चाहिए कि मैं उस हिसाब से चेंज हो जाऊँ। बंदे को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, स्टबर्न नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अलावा मुझे ये ना सर ने आई एम सॉरी मैम, जी आपको काट रहा हूँ, जी मुझे जी आपकी ये बात बड़ी मजेदार लगी थी, फेक इट टिल यू मेक इट। ये मैंने बड़ा फ्रेज सुना हुआ है और मैं इसमें बहुत बिलीव करता हूँ कि फेक इट टिल यू मेक इट अक्सर सिचुएशंस में आपकी जान बचा देता है। तो कभी कभी फेक इट टिल यू मेक इट कर लेना चाहिए और ये अच्छा है। तो अच्छा, काफी अच्छा पॉइंट आपने दिया था यहाँ पे। यस सर। सर पर इसमें भी यही है, मैं कुछ 2-3 पॉइंट्स है वो यानी लाइफ रूल है कि पहली बात तो सबसे ये कि बैलेंस होना चाहिए हर चीज़ में। अब यानी ये भी नहीं है कि मैं बिल्कुल ही एक चीज़ वो 360 एंगल ऑपोजिट है मेरा और मैं कहूँ जो मैं वो कर सकती हूँ, तो शायद ऐसे नहीं है। बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए, यानी अगर 10-20% किसी चीज़ की मुझे नो हाउ है तो मैं उसे 50% तक यानी ले जा सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा ये है कि बस हमें एक्सेप्ट करना चाहिए लोगों को। और हर चीज़ के मेरा ख्याल है 360 एंगल्स होते हैं, एक हाँ जितने सर्कल है। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि हमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। अब जैसे बहुत एग्जांपल कोट होती है कि ग्लास हाफ फिल्ड है, ये खाली है। हाँ हाफ तो जो एम्प्टी, बंदा बिल्कुल कह रहा है वो फील्ड है वो भी सही है, जो खाली कह रहा है वो भी ठीक है, क्योंकि बिल्कुल उसकी दलीलें भी उसके पास बहुत हैं। बिल्कुल पर यहाँ बिल्कुल। जस्ट माइंडसेट का फर्क है कि एक बंदा ऑप्टिमिज्म में कह रहा है कि ग्लास पहले खाली था तो चलो अब हाफ तो फिल्ड है, या 1/3 तो है, या 1/4 तो है, यानी पहले से तो भरा है। पर जो हाँ दूसरा कह रहा है कि वो हाफ खाली है वो भी अपनी जगह ठीक है, बस उसकी थिंकिंग का फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे इशू बस ये आता है कि ना लोगों, यहाँ पे इशू मेनली ये होता है कि एक बंदा कहता है ना कि अच्छा ग्लास हाफ एम्प्टी है, तो वो सबको ये कहता है कि मैंने कह दिया ग्लास हाफ एम्प्टी है और सारे यही बोलेंगे अब ग्लास हाफ एम्प्टी है। उसके अंदर फिर आपको लाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए और उन्हें कहना चाहिए नहीं, आपको लग रहा है ग्लास हाफ एम्प्टी है और मुझे लग रहा है ग्लास हाफ फुल है। तो बात अब मतलब हम सेम बात कर रहे हैं लेकिन मुख्तलिफ तरीकों से, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दुश्मन बन चुके हैं या आप मुझे कोई बात नहीं बता सकते या आप मुझे छोड़ के चले जाओगे। तो लोगों को यहाँ पे इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लोगों के ओपिनियंस होते हैं और बहुत होते हैं। तो लोग अक्सर चीज को माइंड कर जाते हैं अक्सर कि नहीं, इसने इसने ये क्यों बात बोली है, मैं तो इस तरीके से सोच नहीं था। कुछ नहीं होता, उन्होंने अगर एक बात बोली तो क्या पता शायद उनको आपकी बात भी ना पसंद आती हो अगर आप कर देते। तो ये चीज आपको ओपननेस रखनी चाहिए कि मेरी जिंदगी में जो भी आ रहा है या इस कमरे में बैठ के जो भी बात कर रहा है तो मैं जेन्युइनली उसे सुनूंगा या सुनूंगी और और उनको उनका ओपिनियन रहने दूंगी, उसको चेंज नहीं करूंगी अनलेस वो नुकसान पहुंचा रहा हो किसी को या उनके अपने आप को। ये सर ये चीज़ है ना कि हमें दूसरों को एक्सेप्ट करना चाहिए। अब बिल्कुल। जैसे एक बंदे का एक चीज काम करने का तरीका और है, इसकी बेस्ट एग्जांपल मैंने वो वाकया पढ़ा हुआ है, प्रॉपरली नहीं याद पर फिर भी, कि हजरत इमाम हसन और हुसैन के सामने एक बुजुर्ग थे, वो वजू कर रहे थे। हम्म तो उन्होंने देखा कि ये सही तरह नहीं कर रहे, पर उन्होंने प्रॉपर यानी एथिकल नहीं समझा कि उन्हें जाके कहें जी आप ये गलत तरीके से कर रहे हैं। हम्म तो उन्होंने कहा कि ये बाबा जी आप, या जैसे भी मुखातिब किया कि आप हमें वजू का सही तरीका बता दें। तो अब उन्होंने भी सोचा कि ये यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं तो कैसे हो सकता है कि इन्हें नहीं आता। पर फिर भी हम्म चले उन्होंने उन बाबा जी ने कहा कि चले आप मुझे मेरे सामने वजू करें तो मैं आपको बता दूंगा कि अगर इसमें कोई गलती है। हम्म तो उन्होंने फिर सही तरीके से वजू किया।
यानी जो होगा। तो फिर बाद में वो बुजुर्ग जो थे उन्होंने उन्हें इतना अप्रिशिएट किया कि मुझे यानी समझ तो आ गई थी कि ऑब्वियसली मेरे तरीके में कोई गलती होगी। तो आप लोगों ने पर इतने अच्छे तरीके से समझाया। यानी हम लोगों का तरीका ये क्या है कि नहीं यार तुम ये गलत कर रहे हो, तुम हो ही गलत, तुम ऐसे हो वैसे हो। इसके हाँ बजाय अगर हम अगले को कहेंगे यार देखो ये चीज़ थोड़ा सा यानी इस एंगल से थोड़ा सा इधर टिल्ट करो तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। हम बिल्कुल अपना तरीका चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं आपने बहुत सही कहा है। आई थिंक सोचना चाहिए यहाँ पे लोगों को इस चीज़ के बारे में, लेकिन आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता ही चेंज होगा सब कुछ, बिकॉज खैर ये कहना बनता नहीं हमारा, बिकॉज पाकिस्तान बहुत बहुत साल हो गए हैं बन चुका है, तो अब तक अगर चेंज हो चुका होना होता तो हो चुके होते हम। राइट। लेकिन आई आई वुड सजेस्ट कि आप लकी हो और आप लोगों को कि ये फैसिलिटी मिली हुई है कि आप किसी एक और इंसान से ऐसी बातें सुन पा रहे हो और आपको पता है कि आप नॉर्मल हो और दुनिया इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं जितनी हमें लग रहा है। लोगों के पास अक्सर ये फैसिलिटी नहीं होती और उनको लगता है कि हमारे दिमाग में बस दुनिया जैसे है बस वैसे ही है और वो तंग आ रहे होते हैं। तो अच्छी बात है कि हमें इन चीज़ों का जितना पता चलता रहना, जितना हम अवेयर होते रहें कि लोगों के तौर तरीके क्या हैं, अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, एक्सेप्टेंस क्या होती है, उतना ही हम दूसरों को भी ग्रो करवाएंगे और खुद भी ग्रो करते जाएंगे उनके साथ ही। तो ये काफ़ी आपने अच्छे पॉइंट्स दिए हैं। ये अच्छा एक थैंक यू मीनिंग सर। समीर, ये एक हाँ मीरी के नाम जी। से उनका आई एक एम नॉट मैंने श्योर। सवाल अभी पढ़ा था कमेंट सेक्शन में, तो ये क्या है? आपका नेम क्या है मेरी? मीरब नेम है मेरा। मीरब मीरब नाम है मीरब। इनका। ओके हाँ जी, अच्छा आप पूछिए सवाल। सर मैं पूछ रही थी कि एक मिनट, कि जब मैं 8 क्लास में थी तो थोड़ा सा इशू क्रिएट हो गया था, तो तब मेरी मैम ने मुझे बोला कि मैं अब नॉर्मल हूँ। तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुई, इवन अभी तक मैं उस चीज़ है। से बाहर नहीं निकल पाई। नहीं मीरत, तो अब बात सुनो। इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, आप क्योंकि टीचर भी एट द एंड ऑफ द डे एक इंसान है, ठीक है, और इंसान गलतियां करते हैं। मतलब मैंने भी गुस्से में आके जी लोगों को शायद ऐसी बातें कह दी होंगी जो शायद वो कभी सुनना भी ना चाहते हो, या लोगों ने मुझे ऐसी बातें कह दी होंगी जो शायद मैं कभी तसव्वुर ही नहीं कर सकता था कि वो मुझे इस तरह की बात कर सकते हैं। तो हर किसी के मुंह से छोटी छोटी चीज़ों पे कोई ना कोई ऐसे बड़े अल्फाज निकल आते हैं और वो फिर दूसरे बंदे के दिमाग में रहते हैं। तो आप ये ना कभी समझना कि आप में कोई कमी पेशी थी। उस जो इंसान था उसने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया था ना, एक सेकंड को, आई एम सॉरी, ये हुमा का एक मैसेज है, कह रही है आई वांट टू ऐड वन मोर पॉइंट। बस हमारी ये बात जैसे ही मैं कंप्लीट करता हूँ ना मुझे बता देना। तो अच्छा खैर, तो मैं कह रहा हूँ कि लोगों के एक्सप्रेस करने का तरीका मुख्तलिफ होता है, ठीक है। मतलब कुछ चीज़ें आप माइंड कर सकते हो, कुछ चीज़ें आप माइंड नहीं करोगे, लेकिन लोग बोलते रहेंगे। तो आप कभी भी दिमाग में ये ना समझना कि आप किसी से कम हो या आपके अंदर वो चीज़ नहीं है जो शायद बाकियों में है। एबनॉर्मल, एबनॉर्मल का मतलब क्या है? एबनॉर्मल एक वर्ड होता है। एबनॉर्मल नॉर्मल का ऑपोजिट है, ठीक है। नॉर्मल का मतलब होता है वो चीज जो होती भी आ रही है और वो चीज जो सबके दिमाग में बैठी हुई कि ये ऐसी ही होनी है, उसे कहते हैं नॉर्मल। एब नॉर्मल होता है जब वो नॉर्मल से हट के हो। तो कभी कभी अब नॉर्मेलिटीज जो होती हैं वो बुरी नहीं होती। मतलब अगर लोगों, अगर बिल फर्ज मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि लाइक अगर कोई शादी पे आप जाते हो और वहां पे काम वाले भरे हुए चमकियों वाले जोड़े पहन के आप जा रहे हो, तो शादी पे इस तरह के जोड़े पहनना क्या है? नॉर्मल है। उस उस दिन, शादी के दिन, एबनॉर्मल क्या चीज होगी? फिर उसका ऑपोजिट, राइट? या उससे हट के अगर आप कोई चीज करो, लेकिन अगर आप हट के करो तो क्या पता वो आप पे अच्छी भी लगे। सो एबनॉर्मल, कभी भी एबनॉर्मल होने का मतलब ये नहीं होता कि आप अकल से पैदल हो या आप से कोई चीज नहीं की जाती या आप बेकार इंसान हो। एबनॉर्मल का मतलब बस ये होता है कि आप बाकियों से हट के हो, आप थोड़े just like डिफरेंट Albert हो। Einstein, he was a genius and he was called and he was known for that he is abnormal, लेकिन वो जीनियस था ना। तो हाँ कुछ लोग जो हटके होते हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, वो क्रिएटिव होते हैं, वो जीनियसेस होते हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। सिर्फ अगले से हम्म, कॉम्प्रिहेंड नहीं हुआ जा रहा आपका आइडिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप abnormal हो सकता है वो कुंद जहन है, he is stupid enough। हाँ। तो नहीं समीत, आपने थैंक यू सर। बहुत अच्छी बात की है। बल्कि इनफैक्ट जो मीरत, आपके जो टीचर जिन्होंने आपको ये बात बोली होगी ना,
वो उस टाइम पे जी। अब आप नहीं बता सकते कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या मेल टीचर था, फीमेल टीचर थी, सर थे? फीमेल। फीमेल टीचर, तो क्या पता वो अपने शोहर से लड़के आई हो या कोई भी इशू आ गया हो, मतलब उसके दिन में पता नहीं और क्या हजार मसले चल रहे होंगे, और उसने ये बात शायद किसी ना किसी को बोलनी होगी कि चलो आज मैं किसी ना किसी पे गुस्सा निकालूंगी, और उस टाइम शायद लकीली बाय चांस आप उनके सामने आ गई तो उन्होंने वो आपको बात बोल दी। तो जरूरी नहीं होता कि एक बंदा स्पेशली टाइम निकाल के आपके पास आएगा आपको ये बात कहने के, मीरत आप अब नॉर्मल हो, समझ आ गई? तो इसलिए टेंशन नहीं कभी लेनी। लोग बड़े अजीबो गरीब टाइम पे ऐसे इंसान पे गुस्सा निकाल देते जो जिनका ताल्लुक ही नहीं होता उस सिचुएशन से। पता नहीं उस बेचारी की लाइफ में क्या चल रहा होगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि बेकार कोई नहीं होता। एब नॉर्मल बहुत लोग होते हैं, मैं खुद एब नॉर्मल हूँ, और मुझे अच्छा लगता है एब नॉर्मल होना, क्योंकि मैं हट के हूँ, मेरे काम हट के हैं, मेरी चीजें हट के हैं। तो इस तरह मैं फैशन डिजाइनर हूँ, तो मेरा नाम भी इसलिए बना हुआ है, इसलिए फेमस हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि या फेमस होना शुरू हो रहा हूँ क्योंकि लोगों को पता है ये हट के है। तो एब नॉर्मल कभी बुरी चीज नहीं होती। एब नॉर्मल बस एब नॉर्मल का मतलब होता है नॉर्मल से हट के, और नॉर्मल अब नॉर्मल रहना बहुत बोरिंग हो चुका है वैसे भी। इसलिए अगर आप बिल्कुल। नॉर्मल से हट के हो तो फिर आप यूनिक हो, स्पेशल हो। तो आप स्पेशल बनो रादर देन कि आप बस बाकियों के अंदर बस आप ब्लेंड इन हो जाओ और आप नजर ही ना हो किसी को। तो ये है। थैंक यू सर। नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हुम्मा? नहीं सर, महानूर। अच्छा, महानूर, महानूर। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि लाइक हम किसी भी प्लेस पे रह रहे हैं, हम्म हमें कुछ लोगों के साथ रहना पड़ रहा है, तो कुछ ऐसे मेंटालिटी के लोग होते हैं कि वो टीज करते हैं। मतलब क्यों हम बॉदर भी नहीं कर रहे हैं उनको, लेकिन हमें उनके साथ रहना भी पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी ये दे देती हूँ कि हम हॉस्टल में रह रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे हम्म वो जो 4-5 लोग हैं उनमें से मेजोरिटी यही है कि वो हमें तंग कर रही है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा टीज हम्म। कर रही है, लाइक रात को लेट लाइट को ऑफ करना, लाइक इस तरह का कुछ भी, ठीक है। अच्छा। वो क्यों करते हैं? मतलब मुझे कभी इस चीज की समझ नहीं आई। मतलब हम आप हम्म, बॉदर भी नहीं कर रहे हैं, हम आपको इग्नोर भी कर रहे हैं, लाइक हम आपसे बातें भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ये ना बेसिकली बुलिंग करना, किसी को बुली करना। जो आप टीज करना कह रहे हो, वही तंग करना किसी को बिला वजह, स्पेशली आपके ये असल में आपके साथ ऐसे ही हो रहा है? आप हॉस्टल में आपके जी साथ सर, ये हो रहा है? जी सर, जी सर। अच्छा। छोटे छोटी चीजें हो रही हैं जैसे लाइट बंद कर देना, पंखा बंद कर देना, या शोर मचाना, या कोई बड़े वाले इश्यूज भी आ रहे हैं कि चीज चोरी नहीं कर सर, लेना या? नहीं नहीं, इस टाइप का कोई नहीं, बस वैसे ही एक है, तो मुझे बॉदर हम नहीं करते इस तरह की छोटी छोटी चीजों को। हम्म। फिर ये क्वेश्चन सिर्फ ये है कि क्यों करते हैं, लाइक उनकी हाँ। तरबियत में ऐसा कुछ होता है कि क्या है कि हम जो वो काम नहीं कर रहे हैं वो लोग ऐसा कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, उनकी तरबियत में इशू नहीं होता। अक्सर ये भी होता है कि माँ बाप जो होते हैं वो अपनी तरफ से फुल कोशिश कर रहे होते हैं अपने बच्चों को बेहतर बनाने की, या अब के वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट बने, कि जहाँ पे भी जाएं तमीज से रहे। हाँ, तरबियत अक्सर लोगों की बहुत खराब भी हुई होती है, लेकिन यूजुअली माँ बाप का गोल ये होता नहीं है कि चलो बच्चा ही पैदा कर लिया है और अब उस बच्चे को बदतमीज आप बना रहे हो, बड़ा करके उनको कह रहे हो कि यार जाओ जो करना है करो, दफा हो यहाँ से। तो फिर वो एक तरबियत खराब होती है। लेकिन अक्सर जो पेरेंट्स होते हैं, मैं कह सकता हूँ कि नेचुरली हर पेरेंट की ख्वाहिश ये होती है कि उनका जो बच्चा है वो दुनिया में फसाद ना फैलाए, वो दुनिया के काम आए और वो अच्छा हो। बेशक वो माँ हो या बाप हो या जो भी आपको संभाल रहा है उस टाइम पे, उनकी हमेशा ख्वाहिश ये होगी कि जब ये बच्ची बड़ी होगी या जब ये बच्चा बड़ा होगा, ये आगे जाके सोसाइटी में एक अच्छा रोल प्ले करेगा। लेकिन अब होता ये है कि जो लोग इस तरह की चीजें करते हैं ना, ये तंग करना किसी को या टीज करना या बुली करना, उनके इश्यूज जो होते हैं ना वो बेसिकली उनके अंदर से आ रहे होते हैं। उनके अंदर इस तरह के मसले होते हैं जिनको वो रिजॉल्व नहीं कर पा रहे होते। अक्सर काफी स्टडीज अब तो आ चुकी हैं बहुत ज्यादा, कि जो बच्चे जो है जो स्कूल में जाके या कॉलेज के टाइम पे जाके बच्चों को तंग कर रहे होते हैं ना, या लोगों को तंग कर रहे होते हैं, उनके साथ बचपन में वही चीज हुई होती है। तो ये उनके दिमाग में एक साइकोलॉजिकली ना वो एक चेन में फंस जाते हैं, वो कर ही जाएंगे ये, क्योंकि उनके साथ खुद ये हो चुका है। तो अब आप देख लो, मैं मतलब जनरलाइज नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे मदरसे ऐसे ही होते हैं, लेकिन आप मदरसों में भी अगर आप देखो, जो आपके लाहौर में स्पेशली मदरसे हैं या पेशावर वगैरह में है, आपको क्यों रोज सुनने को खबरें मिल रही होती हैं कि इस फलां मदरसे पे फलां मौलाना पकड़े गए? न्यूज में अक्सर वीडियो भी दिखा देते हैं, वो तो थोड़ी बहुत वो धुंधली करके कि देखो ज्यादती कर रहे हैं बच्चे के साथ। क्यों? क्योंकि अक्सर जो इनके ऊपर मैंने इनके ऊपर बड़े बहुत आर्टिकल्स पढ़े इन चीज़ों के बारे में, स्टडी की है, तो ये हुआ है, पता है चला है कि
उनके साथ भी खुद बचपन में इस तरह से इश्यूज हो रहे थे। जिस मौलाना ने या जिस इंसान ने भी नाउजुबिल्ला मस्जिद के अंदर बैठ के या किसी बच्चे के साथ कोई ज्यादती की है, उसके साथ एग्जैक्टली वही चीज मस्जिद में बैठ के तब हुई थी जब वो खुद एक बच्चा था। तो जब कोई लड़की या लड़का या कोई भी शख्स, कोई बूढ़ा, जवान, यंग बच्चा कोई बदतमीजी कर रहा हो या कोई ऐसी चीज कर रहा हो जिससे उसे पता है कि लोग चिढ़ रहे हैं लेकिन वो कर ही जा रहा है, तो आप ये अपने दिमाग में बिठा लो कि वो चिढ़ाने के लिए नहीं कर रहा, वो अटेंशन के लिए कर रहा है कि लोग उसकी तरफ आएं और उसको पूछें कि आप ठीक हो। क्योंकि शायद उनके पास और कोई बताने का तरीका नहीं है। मे बी शायद उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो किसी को जाके बता सके कि यार मैं अपनी जिंदगी से आवाज़ हूँ। तो वो शायद आपकी अटेंशन लेने के लिए आपकी लाइटें बंद कर रहे हैं या आपको तंग कर रहे हैं। तो आप अगर जब भी कोई इस तरह का इश्यू आए, आप माशाल्लाह से मतलब आप बोल सकते हो, आपके पास एक दिमाग है, आपके पास एक मतलब आप जहन है एक, हम सब में हर हम सब के पास। तो हम बहुत आराम से अपने आप को जाके एक्सप्रेस किसी से भी कर सकते हैं अगर हमारा दिल चाहे और अगर हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस हो। तो नेक्स्ट टाइम कोई भी इशू आए, कोई भी आपको तंग करे तो आप उनको ये इस तरीके से ना देखो कि ये दुश्मनी बनाना चाह रहे हैं। ऐसे कोई नहीं होता। जब भी कोई बुरी हरकत कर रहा होता है ना, वो कहीं ना कहीं से उस बंदे के अपने दिमाग में से कोई इश्यूज होते हैं जहां से वो चीज निकल रही होती है। तो अगर आपको चीज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करिए, आप उनको बिठा के उनसे पूछो एक दिन कि यार सब कुछ ठीक है, मैंने सिर्फ तुमसे ये पूछना था कि क्या हाल है तुम्हारा, मतलब लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि तुम इस तरह की काफी चीजें करती रहती हो। तो अम, क्यों हो रहा है ये, कोई लाइफ में मसले चल रहे हैं, या चलो ठीक है कल को मेरे साथ आना, चलो हम कुछ कुछ खाने चलते हैं, या चलो कैफेटेरिया में चलते हैं। मतलब उनके साथ बनाओ, दोस्ती बनाओ, रादर देन कि उनको अपने आप से दूर करो। जितना आप, क्योंकि कोई बदतमीज इंसान भी होगा ना, आप देखना उसको आप प्यार से कोई चीज जाके बोलोगे वो ठंडे हो जाएंगे, इसी वक्त ठीक हो जाएंगे। तो डिपेंड करता है कि आप लोगों से डील किस तरह से कर रहे हो। तो अगर आपको सर कोई चीज बेसिकली सर हम करते तो यही है, मतलब उनको भी इग्नोर भी करते हैं उनकी इस तरह की बातों के। हालांकि ये बातें हैं नहीं कि वो सर पे सवार करने वाली, लेकिन ठीक है हम इग्नोर भी करेंगे, हम उनसे बातचीत भी करेंगे। लाइक उनका आगे से आंसर ये होता है, हाँ तो है, तो तुम्हें ऐसे क्या मसला, तुम जाके अपना काम करो। लाइक सीरियसली हम आपसे हाँ नहीं, वो एक वही इशू होता है वो ये सारी मेंटेलिटी ऐसी है, ये क्या है, मेरा नहीं ख्याल कि वो हाँ ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात चल रही होती हैं, तो वो एक और हिसाब होता है देखने का। हम देख भी सकते हैं उनको, अच्छा ठीक है अब कोई मसला हाँ चल रहा होगा उनकी जिंदगी में, लेकिन नहीं, ये आप कुछ बस और ही है इग्नोर शायद। इग्नोर ना करो, क्योंकि कल को अगर मैं कोई चीज लेट सपोज मैं किसी के सामने करता हूँ, या मतलब लेट सपोज किसी दोस्त के घर कारपेट है और उस कारपेट पे वो जूते पहनना अलाउड नहीं है, और मैं उसके घर मेहमान आया हूँ और मैं जूते पहन के आ गया हूँ उसके कारपेट पे, और वो लेट सपोज मैं एक महीने में 4 दफा जा चुका हूँ उसके घर और उसने चारों दफा मुझे बताया ही नहीं कि प्लीज जूते उतार दो, मेरे कारपेट के ऊपर ना पहन के आओ। तो मेरे दिमाग में वो कभी ख्याल नहीं आएगा, मैं यही सोचूंगा कि शायद ही माइंड नहीं कर रहा, चलो कुछ कुछ नहीं होता, इतना बड़ा मसला भी नहीं है, चलो चलो मैं कर ही जाता हूँ, खैर है। बट इनफैक्ट आप जानबूझ के भी नहीं करोगे, आपके दिमाग से ही वो निकल जाएगा कि आप ओ मैं कारपेट पे नहीं जूते लेके आ गया। आप कहोगे कि यार अगर ये इतना चिल है तो फिर मैं भी चल रहता हूँ, कर ही जाता हूँ। तो अगर आप इग्नोर करोगे तो दूसरे के दिमाग में आप बेसिकली ये, इनफैक्ट आप कुछ बिठा ही नहीं रहे उनके दिमाग में, आप उनको कुछ कोई सिग्नल ही नहीं दे रहे कि ये चीज बुरी है या ये चीज आपको तंग कर रही है। तो अगर कोई भी इशू हो, हंस लो, साथ साथ हंसोगे, सिचुएशन थोड़ी बेहतर होगी, लाइट होगी, मतलब खुश हो जाएंगे यही लोग करते सारे। हैं हम, खुश हाँ होते हैं, लाइक बातें शातें लेकिन करते हैं, तो हाँ सिचुएशन हो जाती है। लेकिन अगर इश्यूज बहुत तंग कर रहे हैं, या अगर इश्यूज ऐसे हो रहे हैं कि यार अब बस हो गई, अब तो मुझे चिढ़ चढ़नी शुरू हो गई है, तो फिर उनको जाके आराम से बता दो कि यार प्लीज ये चीज ना करना, बिकॉज मेरी लाइफ मुझे आज मेरा दिन अच्छा नहीं गुजर रहा और मैं बहुत चिढ़ रही हूँ। अगर तुमने शराफत से मेरे साथ आगे बैठना है तो बैठ जाओ, और अगर नहीं तो फिर यहाँ से चले जाओ, तंग ना करो बस। और अगर फिर भी नहीं समझ आती तो फिर तुम उल्टा वो करना शुरू कर दो उनके साथ जो वो कर रहे हैं तुम्हारे साथ, बस। जी सर ठीक है। तो हाँ। ओके, एनी क्वेश्चंस, किसी का है कोई और क्वेश्चन? Well, thank you so much, Samir. You gave नहीं नहीं, us नो प्रॉब्लम। time. You were not supposed to give this much time, but I am so happy नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। that you answered all the questions. और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कैन दे ईमेल यू देयर पर्सनल प्राइवेट क्वेरी? हाँ हाँ, मेरा ईमेल भेज दो आप इन्हें, बेशक मैं बल्कि कमेंट सेक्शन में भी ये ईमेल अपना दे लिख दूंगा यहाँ पे, तो कोई भी मसला हो कुछ भी हो
बिला झिझक आप ईमेल भेज दो, और ठीक है, मैं वादा नहीं करूंगा कि मैं उसी सेकंड रिप्लाई आ जाएगा, क्योंकि और भी सी चीजें चल रही हैं, बट आप ये दिमाग में रख लेना कि आपको विद इन 1-2 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई आ जाया करेगा। जो भी होगा, इशू होगा, आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हो। और कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस ना करना छोड़ना। मतलब आप बेशक क्लास में जाकर टीचर के साथ एक्सप्रेस करो अपने आप को, किसी लड़के के साथ एक्सप्रेस करो, किसी लड़की के साथ एक्सप्रेस करो, किसी पेरेंट के साथ एक्सप्रेस करो, अपनी माँ को जाके उनको अपने मसले बताओ, या बाप को, या बहन को, भाई को, किसी को भी। आपकी लाइफ में एक बंदा ऐसा या एक बंदी ऐसी होनी चाहिए जिसको आप अपने सारे मसले बता सको। वो नानी की शक्ल में भी हो सकती है, वो दादा की शक्ल में भी हो सकता है, वो आपका भाई या बहन भी हो सकता है, वो दोस्त भी हो सकता है, वो हमसाया भी हो सकता है। समवन यू ट्रस्ट, और उनको कभी ना छोड़ना अपनी लाइफ में, उनको अपने मसले बताते रहना, और आप देखना आपकी लाइफ इतनी आसान हो जाएगी। आप खुद ही कहोगे कि यार ये तो बहुत मेरा बड़े आसानी से अब दिन गुजर रहे हैं मेरे। राइट। तो ओ हाँ, सॉरी, हुमा का वो कमेंट आई कि सर मैं ऐड। हाँ जी हुमा, आप क्या कहना चाह रही हैं? सर बस लास्ट चीज एक जो मैं ऐड नहीं नहीं, करना बताओ चाह रही बताओ थी। यस सर। बताओ। सर इसमें एक चीज यही है कि हम लोग जजमेंटल ज्यादा हैं। हम हम्म जो आपने बात की है उसी को मैं एलैबोरेट कर रही हूँ कि हम लोग अगर सपोज अगर मुझे पता है कि मुझे इस चीज से इशू हो रहा है तो इसलिए मैंने अगले पे शाउट किया है, क्योंकि हम्म मोस्टली हम लोग अगले को कहते हैं जी नहीं मेरा बात का वो मतलब नहीं था जो आपने समझा है। हम्म तो दूसरे एंड पे हम भी यही कर रहे होते हैं। अगर मैं जस्ट ये देख रही हूँ कि उस बंदे ने मुझे ये बात की है, मैं ये नहीं देख रही कि उसके बैक एंड पे थॉट्स क्या थी या उसका हाँ। उस टाइम सिनेरियो क्या चाह रहा था। हम्म तो हम ये चीज नहीं समझते हैं, इसलिए फिर हम ज्यादा टची हो जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर हम चीज को समझना शुरू कर देना कि हाँ इसने इसलिए बात बोली क्योंकि उसकी लाइफ में ये शायद चल रहा होगा, तो फिर आप चीजों को लॉजिकली देखना शुरू कर देते हो रादर देन इमोशनली। इमोशनली हर चीज को आप देखोगे तो आप हर चीज को दिल पे लोगे। अगर आप यस सर वो लॉजिकली चीज। जी जी। अगर आप लॉजिकली देखोगे तो फिर आप कुछ भी दिल पे नहीं लोगे, आप उल्टा दूसरे की मदद भी कर सकोगे शायद। यस सर। हम्म। सर सेकंड चीज यही है कि हेलो। सर वही कि बैलेंस होना चाहिए। जैसे अभी महानूर ने शायद बात की है कि लोग टीज करते हैं, तो उसका एक हद होनी चाहिए कि आप उसे प्यार से समझा लें, आराम से समझा लें, कोई और तरीका यूज कर लें, पर एक हद के बाद एक यानी बैलेंस के बाद आपको उसे शटअप कॉल दे देनी चाहिए, इससे पहले कि वो चीजें आपके लिए वर्स हों और हाँ। ऐसे लोग यानी मेंटल इश्यूज में पड़ें। तो इसलिए हम्म बेहतर है कि आप उसे शटअप कॉल दे दें। हाँ, नहीं, आई थिंक बेस्ट सोल्यूशन ये है कि सबसे पहले आपकी हेल्थ मैटर करती है, फिर दूसरे बंदे की हेल्थ मैटर करती है। अगर आपको कोई तंग कर रहा है तो आप ये ना सोच के उसे दोस्ती लगाओ कि नहीं चलो इसके इश्यूज चल रहे हैं तो मैं इसे ठीक करूंगी और वो बेहतर हो जाएगा, शायद मुझे तंग नहीं करेंगे। आप ये देखो कि वो आपके लिए कितना मैनेजेबल है। अगर तो वो इतना तंग कर रहे हैं कि हाँ यार खैर है, मतलब साइड पे हो जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे कुछ देर बाद, तो फिर ठीक है। लेकिन अगर आपको इतना तंग कोई चीज कर रही है या कोई इंसान कर रहा है कि आपको आपका दिन गुजारने में मुश्किल हो रही है, आप लिटरली रोज कॉलेज जाते हुए सोच रहे हो कि यार मैं, या हॉस्टल में उठते साथ आप ये सोच रहे हो कि यार अब दोबारा एक और दिन गुजारना पड़ेगा इन लोगों के साथ, तो फिर आप यू नीड टू लर्न टू से नो। यहाँ पे एक मसला ये है कि लोगों में कि वो नो नहीं कहना चाहते, इतने आराम से कह सकते हैं कोई कोई दूसरे बंदे, ताकि वो ये सोचते हैं कि यार दूसरे बंदे का नुकसान ना हो जाए या ये ज्यादा बड़ा इशू ना क्रिएट हो जाए। लेकिन आप साफ साफ आप देखना, अगर आप किसी को नो बोलोगे ना किसी बात पे कि नहीं बस, आपकी लाइफ में ऐसे चेंजेस आएंगे कि आप खुद हैरान रह जाओगे कि ये कैसे आए हैं। जस्ट लर्न टू से नो। ज्यादा बुली हो रहे हो, ज्यादा टीज हो रहे हो, नो कहना सीखो कि अब नहीं चलेगा ये, अगर अब किया तो फिर मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा या बहुत बुरी पेश आऊंगी। और फिर दिखा भी दो रहे, थोड़ा फेक इट टिल यू मेक इट वाला हिसाब कर दो, अब बढ़ा चढ़ा के अपने आप को दिखाओ, वो ऑटोमेटिकली बैक ऑफ कर जाएंगे। फिर भी ना बैक ऑफ करे, किसी अथॉरिटी से बात करो, लेकिन सबसे पहले सेफर तरीके यूज करो उनको अंडरस्टैंड करवाने में, प्यार से बात करने में। शायद दोस्ती तुम लोगों की हो जाए। शुरू शुरू में ऐसे जो मेरे दोस्त अब हैं, हम बचपन में एक दूसरे को इतना तंग किया करते थे और इतना जलील किया करते थे, और अब हम सारे दोस्त बन चुके हैं। तो कभी कभी फ्रेंडशिप ऐसे भी बन जाती है। तो पहले सेफर तरीके ढूंढो और फिर आहिस्ता 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 नो की तरफ जाना शुरू करो कि नहीं अब नहीं। अगर तो वो फिर भी नहीं सुधरता है तो फिर इवेंचुअली ठीक हो जाएगा सब कुछ, टेंशन नहीं लेनी। यस सर। हम्म, All right. Thank you so much everybody for coming. नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम। और स्पेशली समीर आपके लिए बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, थैंक यू, मुझे बड़ा मजा आया आज। अहमद शकूर कह रहे हैं थैंक यू सर, इट वाज अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग सेशन। यू आर वेलकम। थैंक यू अहमद। ओके एवरीबॉडी, टेक केयर। अल्लाह हाफिज।
चलो हाफिज। अलग